Now. Yes. All the best to everyone. All the best, sir. All the best, Abuji. All the best. All the best. All the best. Good afternoon and welcome, friends, for another episode of Mindspeak. After a break of 1 week, when we start something in life at an older age, they say you must take short breaks as you proceed. कुछ रेस्ट मिल जाएगा, कुछ कमियां सुधारने का मौका मिल जाएगा, नए विचारों के लिए सोचना का मौका मिल जाएगा और कुछ आगे करने के लिए रास्ता दिखाई देगा। 45 दिनों का जो नॉन स्टॉप माइंड स्पीक वेबिनार के बाद we are back again with you. We made several benchmarks and we raised the bar at several occasions. 140 स्पीकर आज तक आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे। 45 दिनों के अंदर करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके हैं इस वेबिनार्स का। और हम किसी से compete नहीं करते हैं और मैं मानता हूं कि the world is one family, as said in the अर्थशास्त्र। हम फिर से कोशिश करेंगे और नए स्पीकर्स और नए विषयों पर बातचीत करने के लिए। कुछ ही दिनों में जो डिमांड आई हमारे यहाँ पर कि सर जैसे हमारी दुकानें खुल रही है, हमारी फैक्ट्रियां खुल रही है, सर हमको अब पता नहीं चल रहा है, हमको महसूस नहीं हो रहा है अब क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का जो विषय है, as business is open, the issues, the opportunities, and the way we need to keep ourselves alert is something that we need to know. We have people from various sectors of our industry to give a very wide range of views on how factories, offices, and retail shops must be opened and how we need to address each and every matter cautiously. In the panel, we have Mr. D.D. Karel from NM Karel and Sons, who is a manufacturer from Delhi of jewelry, who has a very modern manufacturing setup. He has served as a COA member in the GJF. He is presently a ZCM member. He's a director at the GJSCI, and he's also director at the IIGJ Delhi. He was also, he is also on the BIS Precious Metals Committee as an industry representative member and has been on the Niti Aayog groups on gold as a member. We also have with us Mr. Ramesh Davanam, the CEO of Davanam Jewelers, based in Bangalore. He is a bachelor's in business management, a chartered accountant, and is the backbone of the financial regulations and banking requirements of his company since 1987. And he also has 20 years experience in the field of exports. We have another gentleman from Jaipur, Mr. Gaurav Jain, who is the partner at Valentine Silver International, which is situated at the SEZ Sitapura in Jaipur. He's a manufacturer and exporter of silver jewelry. He's also the president of Sitapura SEZ, which is holding the Gems and Jewelry in the Industries Association. And he's also associated to many other institutions in various capacities as well. हमारे साथ नितिन खंडेलवाल जी भी हैं, जो MD हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स के, वो अकोला से हैं महाराष्ट्र में। ये IPC रह चुके हैं, इमीडिएट पास्ट चेयरमैन ऑफ GJC। ये ज्ञान का भंडार है, वन लाइनर के चैंपियन है और हमारे सबके गुरु भी हैं। मेरा नाम है अशोक बीनावाला, मैं इस वेबिनार का मॉडरेटर हूं। मैं आपसे ये विनती करूंगा कि अब आपके वीडियोस अब ऑफ रखेंगे तो बेहतर होगा, आपको बेटर क्वालिटी का रिसेप्शन मिल जाएगा। आपके साउंड म्यूट किए जाएंगे। 90 मिनट्स का ये जो सेशन रहेगा टोटल, उसमें लास्ट 15 मिनट हम थोड़ी क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे। So friends, let's get started and let's start this discussion.
So, one of the key important factors that I would like to know from all the four panelists is that number one, we have segregated this entire webinar in 4 parts. One is we are going to discuss on the immediate time when businesses are opening, या business की शुरुआत करने के पहले और कैसे करनी चाहिए. बिजनेस शुरू हो जाने के बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते निकल जाने के बाद किस तरह का माहौल होता है वो उनसे समझें. क्या अलर्ट्स हैं, क्या एप्रीहेंशंस इसमें हो सकते हैं, क्या कमियां महसूस करेंगे, क्या सिचुएशंस खड़े होते हैं, ये भी उनसे जानेंगे. हर एक प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हमको मिल सकती है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और इसमें चैलेंजेस भी क्या है हमारे वो भी जानेंगे. कुछ हमारे पैनलिस्ट हैं, उनके 3 हफ्ते से फैक्ट्रियां चालू हो गई है, किन लोगों की दुकानें 2 हफ्तों से चालू हो गई है, किन्होंने 1 हफ्ते से काम शुरू कर दिया है और किन लोगों को भी शुरू भी करना भी बाकी है. तो मैं शुरुआत करूंगा. मेरा फर्स्ट प्रश्न है, एज वी ओपन, हम जैसे खुल रहे हैं तो सर मैं शुरुआत करूंगा फैक्ट्रीजों की. हम फैक्ट्रीज, होलसेल ऑफिसेज और रिटेलर्स तीनों के लिए अलग अलग डिस्कशंस करेंगे. कुछ बातें मिली जुली भी है, काफी चीजें सेम है. वो जो भी स्पीकर्स है वो बता देंगे कि ये जो बातचीत हो चुकी है वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है. तो मैं शुरू करूंगा फैक्ट्रीज से, और मैं विनती करूंगा डीडी करेल जी से कि सर एज वी ओपन, हमने अगर किसी के फैक्ट्रीज खोलने का विचार हो रहा है कुछ दिनों के अंदर, या कल से शुरू कर रहे हैं या परसों से शुरू कर रहे हैं, तो सर क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, क्या चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्या तैयारियां करनी चाहिए, और किन चीजों के बारे में हमको अलर्ट रहने की जरूरत है, बताइए सर. हाँ जी, फैक्ट्रीज देखिए पूरे देश में अपने अलावा भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, और रिसेंटली हम लोगों ने जो विशाखापट्टनम में एक्सीडेंट देखा है, ये एक एग्जांपल है कि कोई भी जहाँ ऐसी फैसिलिटीज है जहाँ मशीनें या इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं और वो काफी टाइम से बंद पड़े हैं अगर, तो मेरे ख्याल से उस किसी भी वर्क प्लेस को हमें एक बार एक नए वर्क प्लेस की तरह अप्रोच करना जरूरी है. तो हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई एक बहुत बड़ा पैंडेमिक सामने है, हमें अपना प्लेस जो है लोगों की हेल्थ के लिए भी सेफ रखना है, और हमारे यहाँ काम करने वाले लोग भी उसमें हो सकते हैं, हमारे विजिटर्स भी हो सकते हैं, हमारे कस्टमर्स भी हो सकते हैं, और डिलीवरी वाले, कोरियर, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे मिलने आते हैं और सामान लेके आते हैं. तो मैंने अभी जो कुछ रिसेंट एक्सपीरियंसेस देखे जो हमारे यहाँ भी हुए हैं, एक सबसे बड़ी चीज होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जब आप इतने टाइम के बाद चालू करते हैं तो आप बिल्कुल भी सभी चीजें एक साथ मत चालू करिएगा. जहां तक हो सके किसी भी इक्विपमेंट को पहले प्रोटेक्टेड सर्किट में टेस्ट करिए. शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं पर्टिकुलरली कोस्टल एरियाज में, जहां भी जिस इक्विपमेंट में भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है उसके ऊपर सूट या डिपॉजिट या मॉइस्चर की वजह से मोल्ड या फॉग डेवलप होके और वो शॉर्टिंग के पूरे चांसेस है. मेरे कुछ फ्रेंड है जिन्होंने स्टोर्स खोले, अपनी फैसिलिटीज खोली, और उन्होंने कई दिनों के बाद शटर या दरवाजे खोले हैं तो देखा उनके यहाँ पूरे में मोल्ड और फंगस डेवलप हो गया है. तो मोल्ड और फंगस जो है वुडन फर्नीचर पे, लेदर पे और पेंटेड सरफेसेस पर भी हो सकता है, और ये एज वेल एज पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में भी हो सकता है. सबसे बड़ा रिस्क इलेक्ट्रिकल्स को है जो मैं मान के चलता हूँ. तो आप कोई भी स्विचेस ऑन करते हैं या सर्किट्स ऑन करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग प्रोटेक्टेड सर्किट्स 1 by 1 डिवाइसेस को ऑन करें, उनको रन करें, देखें, ऑब्जर्व करें, और अगर आपके पास क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन है सर्विस के लिए अवेलेबल तो आप उन लोगों को कहें कि जो भी मशीन या इक्विपमेंट ऑन होता है उनको एक एक चीज को मॉनिटर किया जाए. हम लोग यहाँ फर्नेसेज होती हैं जिनमें टेम्परेचर कंट्रोल्स होते हैं और उनमें भी वही इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं. तो जब हम ऑन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो गलत टेम्परेचर की रीडिंग दे सकता है, वो शॉर्टिंग हो सकती है सर्किट में कहीं भी, और एक नया एक्सीडेंट हो सकता है. मैंने कल हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में रात को एक्सीडेंट हुआ है, और चूंकि विशाखापट्टनम में हो चुका तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा इसमें रिस्क इन्वॉल्व है. सिमिलरली बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनमें कूलेंट या वाटर रनिंग होता है और वो काफी टाइम से सेटल्ड है,
तो आपको नहीं मालूम है कि लाइन में स्केलिंग भी हो सकती है, डिपॉजिट भी हो सकता है, या कोई चीजें सेटल होकर उनको ब्लॉक भी कर सकती है। जनरली जो लोग फर्नेसेस यूज कर सकते हैं या करते हैं, या इंडक्शन मेल्टर्स यूज करते हैं गोल्ड मेल्टिंग के लिए, मेरा उनको ये एडवाइस है, जो कास्टिंग मशीन और गोल्ड मेल्टर्स यूज करते हैं या इंडक्शन यूज करते हैं, उनमें कॉयल में कई बार हम लोग रनिंग कूलिंग वाटर यूज करते हैं मेल्टिंग कॉयल में, या कूलेंट भी यूज होता है। तो मैं सभी को ये सलाह दूंगा, ये कोई भी चीजें आप स्विचेस ऑन करने से पहले, कोई भी सिस्टम्स ऑन करने से पहले, आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन को डिप्यूट करिए जो एक एक चीज को पार्शली ऑन करे, कुछ मिनट रन करे और ऑब्जर्व करे कि उसका कोई बिहेवियर खराब तो नहीं हो रहा है, या जो अगर आपके पास टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है तो ये देखिए कहीं एम्पियर लोड तो ज्यादा नहीं दे रहा है, बिकॉज इट कुड रिजल्ट इन शॉर्टिंग एज वेल एनी टाइम। और इसके अलावा चूंकि बहुत सारी चीजें बहुत टाइम से बंद पड़ी हैं, हमारे यहाँ इंकजेट प्रिंटर्स थे और हमने आके ऑन किए 2 महीने के बाद तो पता लगा ये इंकजेट प्रिंटर की इंक ड्राई हो गई है। दिल्ली चूंकि ड्राई इलाका है तो अब वो इंकजेट प्रिंटर तो बेकार हो गए हैं, सारी कार्ट्रिज रिप्लेस करनी पड़ रही है। तो ये चीजें किसी के सामने भी आ सकती है, जो टोनर बेस्ड प्रिंटर है उनमें टोनर खराब हो सकता है। 2 स्पीकर शुरू हुए। हाँ, किसी के यहाँ 2 डिवाइस चालू है। तो ये बेसिक मुझे बहुत सारी चीजें लगी कि जैसे वाटर सप्लाई लाइंस हैं, हमारे यहाँ गैस सप्लाई लाइंस हैं, जो आईजीएल की नेचुरल गैस की सप्लाई है, वो हमें पाइपलाइन टेस्ट करनी पड़ती है रेगुलर रूटीन में भी। तो अभी हमारे लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है कि हमें लाइन को एक बार जो है इसका सप्लाई चेक करनी है, वाल्व शट ऑफ, वाल्व सेफ्टी, इसमें ऑटोमेटिक शट ऑफ भी, हमारे यहाँ लीकेज डिटेक्टर्स भी हैं, तो हमें एक बार सब चीजें ऑन करके रन करके टेस्ट भी करनी पड़ती हैं। बहुत सारी फैक्ट्री में हो सकता है कि ये सब नहीं हो, कुछ लोग एलपीजी भी यूज करते हैं, मुझे नहीं मालूम है वो लीक डिटेक्टर्स यूज करते हैं नहीं करते हैं, उनके यहाँ शट ऑफ सिस्टम्स या सेंट्रल सप्लाई या कोई सेंट्रल बॉटलिंग सिस्टम होगा। तो उनको ये इंश्योर करना है कि यू नीड टू बी 4 टाइम्स केयरफुल विथ पर्टिकुलरली 2 थिंग्स जो हमें एनर्जी देती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। दूसरा एस्पेक्ट केमिकल्स का है फैक्ट्रीज में, जैसे कुछ जगह एसिड्स या केमिकल्स स्टोर्ड हैं, और चूंकि केमिकल्स की एक शेल्फ लाइफ होती है और कई बार केमिकल्स भी अपने स्टोरेज वेसल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अगर आप इतने लंबे टाइम तक उसको बिना हिलाए बिना स्टोर करें, तो कुछ वेसल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के मतलब के लिए होते हैं, कुछ स्टोरेज के लिए होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है अगर आप इतने टाइम तक स्टोर करें। कास्टिंग यूनिट्स जो लोग काम में लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट पाउडर बहुत यूज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने तक जिनके यहाँ भी इन्वेस्टमेंट पाउडर जो लॉकडाउन से पहले छोड़ के गए थे इस्तेमाल करते हुए, तो उन्होंने लिड या कंटेनर बंद किए होंगे, लेकिन फिर भी वो इतने टाइम में रिएक्ट करके क्योर हो जाता है। तो आप अगर उससे कोई भी प्रोसेसेस स्टार्ट करते हैं तो मेरी एक एडवाइस है कि आप उसको थोड़ा सेफ्टी के साथ काम में लें, क्योंकि क्योर्ड इन्वेस्टमेंट को आप दोबारा यूज करेंगे तो प्रेशर या वैक्यूम से रप्चर या बस्ट भी हो सकता है। आपको उसमें थोड़ा सा सेफ्टी और कॉशन एक्सरसाइज करने की जरूरत है। उसके अलावा सैनिटेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा। हम लोग सब ये मान के बैठे हैं कि 2 महीने हमने बंद किया तो हम सैनिटाइज करेंगे तो हम उसके बाद कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन अब हमारी लाइफ का पार्ट बनने वाला है। मेरे को ये लगता है जैसे हम लोग टी शर्ट पहनते हैं और जूते पहनते हैं, अच्छी पैंट पहनते हैं, वैसे ही अभी हम सब लोगों को मास्क पहनने की आदत डालनी पड़ेगी। अभी आप लोग थोड़ी देर पहले हांगकांग का जिक्र किए थे, ये एक ऐसा छोटा सा कंट्री है जिसने, हांगकांग और ताइवान ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने सिर्फ मास्क की प्रैक्टिस के चलते अपने यहाँ इन्फेक्शन को बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि मास्क पहने बिना आप फैसिलिटीज में नहीं जाएं, क्योंकि नई फैसिलिटी, मैं नई वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप 2 महीने के बाद खोल रहे हैं, आपके सामने क्या चीज आएगी, नए विजिटर्स भी आ सकते हैं। नए विजिटर्स इसलिए फिर से ये वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास अननोन एरिया से आपके आदमी आ सकते हैं, आपके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज कारीगर आ सकते हैं, आपको बिल्कुल नहीं मालूम होगा। हमने फॉर्म भी रखे हैं डिक्लेरेशन के लिए, लेकिन लोग जनरली अपने यहाँ सच छिपाते हैं, वो कभी नहीं बताएंगे कि वो पीछे 15 दिन में किससे मिले हैं या वो किस किस एरिया से आए हैं, वो एरिया हॉटस्पॉट तो नहीं है, रेड जोन तो नहीं है, तो ये जनरली लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो आपको ये भी प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे कि आप लोगों की थर्मल स्कैनिंग एटलीस्ट करें, आप लोगों को मास्क लगाने को कहें, और हाथ के सैनिटाइजर्स हैं वो आप यूज करें। सैनिटाइजर के बारे में बहुत लोगों के बारे में मन में एक भ्रांति या डाउट है, मिस इन्फॉर्मेशन है कि आप स्प्रे करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स को भी वो डिसइंफेक्ट कर देता है। रमेश जी, प्लीज बी केयरफुल, इफ यू स्प्रे सैनिटाइजर ऑन एनी ऑब्जेक्ट, it is not going to sanitize anything because it is meant to be rubbed on the skin. So most of the sanitizers are not meant for surfaces of objects.
ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो प्लास्टिक भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है। सो दोज काइंड ऑफ स्प्रे और अल्कोहल सैनिटाइजर्स बिल्कुल भी आप सरफेसेस पे मत यूज करिएगा, उसके लिए अलग पर्पस के सैनिटाइजर होते हैं। ये सब आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। जो मुझे सबसे ज्यादा खतरा लगता है सर, मुझे लगता है गैस और इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स, 3 चीज ऐसी हैं जिनके बारे में हर फैक्ट्री ओनर को, हर मैन्युफैक्चरर को प्लान्ड अप्रोच लेना चाहिए कि आप जाएं, मशीनें तुरंत नहीं स्टार्ट कर दें। इवन एयर कंडीशनर, आपको एयर कंडीशनर्स फैक्ट्री में लगे हुए हैं तो आप जाएं और लाइन से सारे एसी एक साथ नहीं चालू करें, आप फेजेस में मशीन्स और एसीज को स्टार्ट करें, वन बाय वन, बिकॉज यू नेवर नो, those circuits or electricals may have some moisture seeping in, or the condensation might be happening inside the circuits, and you could actually come across a shorting or a short circuit in that case. So please be careful. ये मतलब आपको खोलते हुए जो सावधानियां बरतनी है वो ये मैंने ब्रॉडली बताई। Karil ji, thank you very much. I think a lot of clarity you have given on the all the apprehensions, जो भी चीजों के लिए alert रहने की जरूरत, इलेक्ट्रिसिटी हो या एनर्जी पर ध्यान रखना चाहिए, मशीनरी के लिए खास रखने की जरूरत है, क्योंकि मशीनरी शुरू हो कहीं भी प्रॉब्लम आने की विषय है। गौरव जी से पूछा, गौरव जी आप SEZ के से काम कर रहे हैं, ये दिख रहा है, और आप कुछ उसमें कैसे करते हैं? वैसे मेजर इश्यूज तो करेल साहब ने ले ही लिए हैं। मेरा 2-3 इश्यूज थे, कई बार हम लोग चालू कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट MHA गाइडलाइंस काफ़ी टाइम पहले लोगों ने देखी थी, तो मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार MHA गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें कई छोटे पॉइंट्स हैं। जब तक कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है जब तक तो इट्स ओके, लेकिन कभी भी कोई पास वाली फैक्ट्री में भी होती है और कोई गवर्नमेंट की टीम विजिट करती है, देन विल बी ट्रबल कि हमको 10-20 दिन फैक्ट्री बंद करनी पड़ सकती है। उसमें मेजर इशू है एक तो इंश्योरेंस का, जो कि हम लोग कई बार देखते हैं ESI से जो ऊपर है 21,000 से ऊपर, वो लोग ESI नहीं होता, तो उन लोगों का इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। दूसरा, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों ने अपना वाटर टैंक देखा तो 1.5 महीने बाद मतलब यू कांट बिलीव कि इतना मतलब उसमें कचरा और उस तरह की इंसेक्ट्स थे कि वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे सफाई मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है इन लोगों की इम्यूनिटी के लिए, लेबर्स की। फिर हमने थोड़ा सिक्योरिटी को भी वीक किया है चला के, बिकॉज वी वांट कि लेबर को थोड़ा इजी फील हो कि मैं काम कर रहा हूँ, और हमने उनको यही माहौल दिया कि यू आर एट होम, आपको घर जैसा है। तो हमने उनको अभी मोबाइल प्रोवाइड किए हुए हैं जस्ट बिकॉज कि वो आरोग्य सेतु यूज़ करें, तो उनके आने के बाद 8-10 दिन तक हमको एक बार पता पड़ जाए उन लोगों के कोई भी ऐसी कोई सिम्टम्स दिखते हैं, तो आरोग्य सेतु भी एक हेल्प करता है। प्लस हम लोगों ने सभी स्टाफ और लेबर के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। जब हम लोगों ने तो खैर 27 अप्रैल से फैक्ट्रीज चालू की थी, और हम लोग डेली उनको व्हाट्सएप पे के थ्रू गाइड कर रहे थे, जो भी चीज़ हम उनको बता सकते, बिकॉज वी हैव टू कीप, जो वर्कर हैं वो लोग एक बार में चीज़ को मानते नहीं हैं, आपको बार बार उनको बताना पड़ेगा। और बाकी ऐसे फायर सेफ्टी वाले एक्सटिंग्विशर लाइन है, वो भी एक बार चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ब्लॉक हो जाती हैं वो चीज़ें। और हम लोगों ने इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लेबर के लिए, जैसे हम ऑफिस में भी जैसे 2 टाइम तो चाय देते हैं, बाकी उसके अलावा हम लोग 2 बार गर्म पानी दे रहे हैं, कभी हल्दी का दूध दे रहे हैं, कोई भी इस तरीके से कि इन लोगों को इम्यूनिटी बढ़े। हमारा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन अभी स्टाफ और लेबर के ऊपर है कि वो लोग हेल्दी रहें, तो हमारा वर्क, हमने जो काम चालू किया है वो कंटिन्यू एक लॉन्ग चले। बाकी जितना भी हम लोगों की सिंगल एंट्री जोन गेट्स हैं, तो हम लोगों ने डबल सिक्योरिटी पर्पज से, जहाँ मेन एंट्री हमारी जोन में, वहाँ पे भी हम लोग जैसे अभी सिंगल बाइक पे एक ही जने को आने दे रहे हैं। ऑन द बस वी आर नॉट अलाउइंग मोर देन 50% कैपेसिटी। वॉक इन लेबर्स को भी आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि और हमने जब शुरुआत की थी तो अब सब फैक्ट्रीज ने मिलकर अपना टाइम का जो ओपनिंग टाइम्स थे, आवर्स थे, वो सबने 8 से 10 के बीच में सबने 10-10 मिनट का गैप करा, सो एटलीस्ट एंट्री पे इतना रश एक साथ नहीं हो। सब लोग 10-10 मिनट में 5-5, 4-4 फैक्ट्री खुलती गई, तो धीरे धीरे लोग अंदर एंटर करते हैं। तो वो भी एक जरूरी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी एस्पेक्ट है। और हम लोगों ने अभी 1/3 ही कैपेसिटी कर रखी है, इवन दो कुछ ऑर्डर्स लास्ट पेंडिंग थे,
लेकिन मेरा तो सबको ये कहना है कि अभी जल्दी नहीं करने से बेटर है स्लोली चलें, लेकिन प्रिकॉशंस पूरे लें। थैंक यू गौरव जी। नितिन भाई, मैं आपको एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये सेम सिचुएशन जब होलसेल की ऑफिसेज अब खुलेगी, या आज हमारे मुंबई में तो अभी तक कोई खुली नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली वगैरह में या और जगहों में खुलने लग भी गई है ऑफिसेज, तो उन लोगों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है खुलने के समय पे? अपन आगे जाके बात कर रहे हैं, खुलने के बाद क्या करना है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। सर, खुलने के समय होलसेल ऑफिस में कडेल जी ने सवेरे बात करते समय बताया कि उन्होंने दिल्ली के कोई एरिया का बताया कि वहां तो शोरूम के अंदर सांप भी निकले, क्योंकि एरिया ऐसी थी कि जहाँ पे सब साइलेंट था, ठंडक रही, गर्मी के दिनों में ठंडक आती है, सब आती, तो ये काफी जो रहते, तो मतलब अब ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप से कोई चीज हो सकती है करके। मैं जब एक 15 दिन के बाद में, ओपनिंग के बाद में जब शोरूम के अंदर गया, तो ये पाया कि चूहे की जो लीद होती है वो काफी जगह पे रखी हुई थी। मतलब ये था कि चूहे शोरूम के अंदर मस्ती करके चले गए। बात छोटी सी है, लेकिन कितना बड़ा नुकसान करते, वो एसी की वायर कट कर देते, वो कितनी वायर को मिक्स कर देते, टच कर देते। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये छोटी छोटी चीजें, और सबसे पहले जो कोविड के अलावा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है उसका छिड़काव हम लोगों को करना पड़ा, और फ्यूमिगेट करना पड़ा, ताकि उस समय जो बंद रहा उसके अंदर सारे जो इंसेक्ट्स थे वो सारे उसके अंदर मर गए। अभी इसमें काफी जैन लोग हैं जिनके इसमें, मुझे उसका नहीं रास्ता पता क्या है करके, लेकिन हाँ, चूहे पकड़ने की प्लेट भी आती है। तो ये एक छोटी चीज है, बोलेंगे कि चूहे की क्या बात कर रहे हैं माइंड स्पीड पे, लेकिन ये मेरे को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जस्ट ओपन करा मैंने कुछ घंटे के लिए तो मुझे रियलाइज हुआ। उसके बाद में जैसा कि एक सजेशन भी आया था, स्ट्रॉन्ग रूम खोलते से जितनी कुंदन ज्वेलरी और सब थी वो पूरी गर्मी के अंदर पसीज गई थी। आई डोंट नो इंग्लिश क्या वर्ड है उसके लिए, लेकिन जो पैकिंग मटेरियल है उसमें बहुत हम अलग अलग, हाँ तो सर तो हम क्या काफी पैकिंग मटेरियल ऐसे यूज करते हैं जो फैंसी होते हैं, डेकोरेटिव होते हैं, तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के कलर उसमें, और अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए वेलवेट से लेके सब थे। तो कई नेकलेसेस और ऐसी चीजें देखी जिसमें चिपक चुके थे, उसको लग चुके थे। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया। तो मुझे लगता है कि होलसेल ऑफिस में भी जो इतना हेवी स्टॉक इन इन्वेंट्री होती है, और उनके स्ट्रॉन्ग रूम जो बंद है, और स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रहने से आयरन ओवर्स और जितनी भी चीजें और गैस क्रिएट होती है उसमें गर्मी की वजह से, तो उनको हर चीज संभल के करनी पड़ेगी। और खुलने के बाद में उनको सबसे पहले तो सैनिटाइजिंग, ये वो सब तो बहुत कॉमन चीजें हो गई है, वो सब लोग और बात करेंगे, लेकिन होलसेल ऑफिस के अंदर अपने स्टॉक को प्रेजेंटेबल रखने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए उनको सारी छोटी बड़ी सारी प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी। Ramesh, what do you propose that a retailer should do as soon as he opens his retail shop? You have, I think, started about almost 2 weeks back, and you have experienced the hassles that probably envisaged. So would you like to highlight a few things? If you can speak in Hindi and English, if it is not comfortable, you can speak in English. I think we have been given a very short notice to open. Both Subha Raat ko bola, Subha bolna tha, because I think it was a blessing in disguise. But we are not well prepared. Then overnight हम सब लोग समय एसोसिएशन वाला बात किया क्या करना कैसा करना। तो पहले हमको मैसेज भेजा है कस्टमर्स को, कल से बोल रहा है हम सब लोग शॉप सभी सैनिटाइजेशन हो गया, क्लीन है, आप विजिट कर सकते हैं। सो मॉर्निंग when we opened it early, we called only few staff and we entirely sanitized. We did not tell the staff to come to the shop. After we sanitized, we checked the entire area, generator, AC, strong room, computers, everything. So the things were in order. But because we have a lot of space around the showroom, we are regularly putting pesticides, chemicals to enter the insects or the rats should not go. After entering, we did at around 2 o'clock, we called the staff. We did a mock trial. Because even we are also quite confused how to control the staff, how to control the, because social distancing is a major. The people are already not seen for a long time. When they came, suddenly they wanted to hug each other, so they want to join. It is all basic issues. So we made a mock trial among us as we entered as a customer, how to sanitize, how to give mask, how to store the jewelry, how to deliver the cash, how to pack it, how to deliver.
In fact, first 2 days, I think even a lot of customers came because they were sitting in the Bangalore, very depressed, very isolated. They just came out of the shops, and it was quite unmanageable. So it was a little tough in 2 days. I think now basically we should have sufficient masks and sanitizers and gloves in the shop, because what we are doing, even to the customers, we are giving hand gloves. Because what happens, even some of the people told, if they want to wear the necklace, if you want to wear the earrings, put little hand sanitizer and let them rub it. I mean, I think it's good or right, you should tell me, so that we can allow the disinfect. So you both, we are wearing the gloves and they are also wearing gloves, so that there will be not much to sanitize the jewelry. Even then, we have taken the ultraviolet screening of the jewelry and the necklace. Currently told not to use some of the chemicals. We are using this sodium hypochlorite for the surface infect and isopropyl for the hand sanitizers. So is it correct? I think that's what we have been advised, and so we should tell us, or we should guide us whether we can change it. So we will come to this point. I think basically I think all the retailers, whenever they open the shop, my humble request is, first you have a mock trial. How the customer come, how you should sit, how they clean, because it is becoming, it is just like going to your first standard school. So it is very, very tough. So I feel like retailers should be more careful, because most of the customers, even what we have done a health checkup to all the staffs. I think in Bangalore there is a corporate health checkup body. They are getting done this blood pressure, pulse oximetry, body temperature, BMI, and ECG, and cardiac functions, and CBC. We got all these tests to the staff, because as you said, we don't know from where they are coming. So it's better we get it done. It's easy. We are taking the declaration, and our Karnataka government has given a SOP that we should maintain the register of who is coming, his name, address, email, phone number, that we should submit to them every day to BBMP. Even the temperature of the staff, owners, and the customers, everybody should be reported. So this is, we are going on because a lot of things we have to understand. It is becoming a new normal. So especially, I think we should have a sufficient stock of what we are doing. We're telling customers to remove the mask when they enter the shop. We have a place where they can hang their mask. When they come inside, we give the mask, so that at least it is indirectly covering the face of the customer. Because otherwise, we cannot ask customer to go and stand up the camera to capture it. It is a better way of conveying. We are trying to this tell is them. A very good thing. If you can just emphasize it a little more. Yes, yes. So what we are telling, when the customer enters, we have a hand-free sanitizer. We can put in the leg-operated hand sanitizer. They can put it, and our security checks. We tell them to put their mask, remove the mask, and put it in the stand. They can hang it. Once they come in, say, till they sit, they have to walk to the inside. So at least there are some few cameras which can cover their faces. It's indirect way, because what happens if they ask them to come and stand in front of camera, they may feel offended. So that is a better way. And we are telling them what all we are trying to show them. We are trying to keep clean. We are trying to slowly showing with chemicals. At least they should feel they are taking a lot of care. We are trying to wash the chairs in front of them, so that they are telling you, they should feel comfortable. Okay, I am in a safe place. Because basically, to bring a customer to the shop is a more challenge for the retailers. Forget the business. First, we have to bring the customer to the shop. Unless we demonstrate the strictness, all the hygienic conditions, then they'll go and tell the people, okay, the Avram is good. They are meeting all hygienic standards. So, and we have called all the customers. We have opened. We have sent some videos to all the customers, important customers mostly, and showing how we are clean. I think we should ensure that it reaches all. Otherwise, people may not come because they are quite afraid. I think, but we should have a sufficient stock of masks, gloves, and even our people are feeling, when you put a hand gloves, I could feel in half an hour we get it stretching, itching. I think this all we have to live with it. I don't know how we should control this, because when you put a mask for a glass of mask, your oxygen is blocked, your hydrogen is then we cannot sit for long. If you put hand gloves for a long time, it started sweating, itching. I don't know. We have to find out what are the new methods, because otherwise we cannot count the cash, we cannot count the papers, we cannot touch it. So I think broadly we should take all of this, especially retailers. Please make a mock trial of all the activities
before you allowing the customers. Of course, there are loopholes, there are fallbacks. Even now, we are maintaining the social distance among the staff and among the customers. It's a little bit getting difficult, but we should. And in fact, on a Saturday, first Saturday, I could see the flow of customers huge, because all people are come on Saturday, Sundays. So controlling is easy. I think we should well prepare for it. Thank you. रमेश जी, आपकी बात सुन के मैं थोड़ा हिंदी का अनुवाद कर दूंगा आपकी बात का। ओके, सॉरी। नंबर 1, मुझे आपने कुछ पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग बताए हैं। एक तो आपने ये बताया कि जो सिक्योरिटी का जो इशू है उसमें आपने बाहर चेकिंग करके कस्टमर को अपना मास्क वहां लगा के फिर अंदर वॉक इन करने को बोला है, जितने समय में आपका कैमरा उनका फोटोग्राफ कैप्चर कर सके, और आपके शॉप के अंदर आके उसको आपका नया मास्क आप देते हैं उनको पहनने के लिए। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात ये बताई कि जो भीड़ बन जाती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द large amount of customers can also come. There is a possibility very less number of customer can also come. If less number of customer come, there is a lesser problem. But more customer come, you have a bigger problem then. No problem. Management is a very big important issue. And you cannot afford to dilute anything in the entire process. तो आपको तैयारी दोनों रखनी है, और इसके अंदर कोई मिसकैरेजेस नहीं होने चाहिए, कोई कंप्लायंसेस में कमजोरी नहीं करनी चाहिए। और वन इम्पोर्टेंट पार्ट आपने बताई कि मॉक ट्रायल आपके शॉप के अंदर पहले कर लीजिए। मॉक ट्रायल माने आप एक अनुभव ले लीजिए कि आपने शुरू किया है तो इसमें क्या क्या करना चाहिए, और जो आप सिस्टम्स फॉलो कर रहे हैं तो सारे उसका एक प्रैक्टिस बन जाएगा स्टाफ के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, आपके खुद के लिए, आपके बैक ऑफिस के लिए, सबके लिए। आई थिंक एक और चीज बोलना चाहते हैं। क्या हो गया, हमारा 3 रिटेल आउटलेट्स है बेंगलुरु में। एक आउटलेट है कॉमर्स स्ट्रीट एमजी रोड के पास। उधर सडनली 3 दिन के बाद वो कंटेनमेंट जोन हो गया। वो इमीडिएटली हमको आके बंद करने का बोल दिया। हमारा हेड ऑफिस है, हमारा सर्वर्स, कंप्यूटर्स, अकाउंट सभी हम बंद करके आ गया। देखा तो पूरा सभी जगह का दूसरा हमारा ईआरपी है, हमारा ईआरपी किया। So अभी क्या हो गया? What I feel, most of the retailers have outlets in different parts in Bombay. Sometimes suddenly one zone may become red dot. So what we have on the servers in the head office with the UPS connection, we have taken the remote connections to all the systems. We have taken this important stationery like letterheads, stamps, checkbooks. We are keeping in one more branch, because we don't know when it happened. I think those who are having a retail outlets, this is a new experience for us. Overnight, we told us to close. We closed in 1 hour and came back. Then after 1 hour, we went back, took the permission of police and did all the things. I think ये बहुत जरूर है। कोई दूसरा बहुत outlets है, retail outlets, उसका सर्वर एक ही जगह में, उसका तो कुछ टेक्नोलॉजी को आप देखना, वो कुछ सर्वर बराबर रन होता है। आई थिंक अब तक का जो डिस्कशन हुआ है वो इमीडिएटली जब आप दुकान खोलने या फैक्ट्री या होलसेल की ऑफिस खोलने जाएंगे तो आपको क्या इश्यूज होंगे उसकी चर्चा हमने अभी तक की है। अभी हम बातचीत जो करने जा रहे हैं कि सर अभी हमारी ऑफिस से हमने स्टार्ट कर दिए है और हमने हमारी होलसेल ऑफिस का भी शुरुआत कर लिया है। तो अगर एक हफ्ता या कुछ दिन निकल जाते हैं तो हमें किन किन चीजों की तैयारी करने की जरूरत है और कौन सी बातों के लिए हमको अलर्ट रहने की जरूरत है, ये बताइए सर। I would ask Karel ji to speak. I would like Karel ji to also add a little bit technical information about the sanitizers and the cleaning material which is used in his talk, if he can, whenever convenient. Definitely. सर अभी ये मैंने बार बार ये बात कही है कि हम लोग अपनी फैसिलिटीज को जब खोलने जाएंगे तो हमारे लिए हमें एक बार हर चीज को नई की तरह ही ट्रीट करना। हमारे सामने क्या आने वाला है वी डोंट नो, और अगले हफ्ते मैं कहता हूँ 15 दिन भी अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हमारी अलर्टनेस है इट शुड रिमेन हाइटेंड ऑल द टाइम। मतलब हमें मुस्तैद रहना है, सावधान रहना है कि हर विजिटर को, आने वाले को, इवन अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने को वर्कर्स को, अपने मैनेजर्स को, अकाउंटेंट को, कारीगरों को, सिक्योरिटी स्टाफ को, मेंटेनेंस टीम को, सबको हमें पोटेंशियल कैरियर की नजर से देखना पड़ेगा कि कहीं वो कैरियर तो नहीं है
और चूंकि ये वायरस हमें आंख से तो नजर आने वाला नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे आने वाले समय तक, काफी दिनों तक इनफैक्ट, कि भाई हमारे यहाँ जो भी आ जा रहा है, और इनफैक्ट मॉर्निंग या इवनिंग में हम सिस्टम्स ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। अभी एक चीज और हमने इंटरेस्टिंग नोटिस की कि जो, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की बात कर रहा था, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने कुछ टाइम के बाद कंप्यूटर चालू किए कि उनको अर्जेंट कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट थी फाइलिंग के लिए या कंप्लायंस के लिए। तो जब आके उन्होंने डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की तो उनके कंप्यूटर नहीं चालू हुए। उन्होंने इमीडिएटली किसी हार्डवेयर वाले को समन किया, उसने कहा सर मैं आपके यहाँ आ नहीं सकता हूँ, आप बताओ क्या क्या ऑन करो, सिम्टम क्या आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और वो बाद में पता लगा कि पड़े पड़े वो मेन बोर्ड या कंप्यूटर में सिस्टम्स में भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो उस वजह से उनका डेटा लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए एक मेंटेनेंस टास्क सामने आ गया। पर मैं ये मान के चलता हूँ क्या पता हो सकता है डेटा लॉस भी हो जाए, हु नोस। तो आपको ये भी सावधानी रखनी चाहिए। आप आने वाले टाइम में, हफ्ते में, 10 दिन में आप लोग अपने स्टोर्स खोल रहे हैं, बिजनेसेस खोल रहे हैं, आप लोग कोशिश करिए कि अगर आप बैकअप का अच्छा रूटीन आपके यहाँ नहीं है तो डेटा बैकअप जरूर लेके रखिएगा। इट इज लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन। हम लोगों को पता नहीं है कि इस युद्ध में कब हमारे शहर पे मिसाइलें गिरे हैं। और मैंने 71 वॉर देखा हुआ है, जब पाकिस्तान की फोर्सेस बांग्लादेश साइड से या उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान साइड से रेड करने आती थी 71 वॉर में, तो ब्लैकआउट होता था, सायरन बजते थे, तो हर आदमी कवर ले लेता था, अपने घरों के सब लाइटें बंद करनी पड़ती थी। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए वॉर है, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे सामने कल क्या चुनौती या चैलेंज आएगा वो इस टाइम नहीं मालूम है। उसमें फैक्ट्रीज स्पेशली, मैं एक बात सबसे कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ कारीगर, वर्कर या स्टाफ जो बाहर से आता जाता है वो एक पोटेंशियल कैरियर हो सकता है। और अगर हमारी फैक्ट्रियों में या कहीं भी वर्क प्लेस में 1 या 2 आदमी भी पॉजिटिव हुए तो ना सिर्फ हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, हो सकता है हम अपनी अड़ोस पड़ोस की फैक्ट्रियों का भी नुकसान करें, क्योंकि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ केसेस से ऊपर होते ही वो पूरे एरिया को या ब्लॉक को या स्ट्रीट को लॉकडाउन करेंगे। तो हमें ये मान के चलना है कि अब हमारी जिम्मेदारी जो हमारी हेल्थ की सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे साथ जितने लोग स्टेक होल्डर्स हैं सबकी हेल्थ का हमें ध्यान रखना है। आपको कुछ इंटेलिजेंट लोगों को जैसे अब थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा कई लोग क्या करते हैं, जैसे फ्लाइटों में बैठने वाले अपने बहुत केस आए हैं जो पैरासीटामोल खा के फ्लाइट में बैठ गए या फ्लाइट में लैंड करने से पहले आधे घंटे पहले खाया उन्होंने, तो उनकी टेम्परेचर रीडिंग नहीं आ सकी। तो टेम्परेचर रीडिंग को भी फुल प्रूफ मत मानिए, आप सिम्टम्स भी देखिए, कोई खांस नहीं रहा हो, कोई आपको टायर्ड या फैटीग नहीं फील हो रहा हो, तो ये हमारी जो एक्स्ट्रा आंखें हैं इस टाइम, या हमारा जो विजन है इस टाइम, हमें इसको थोड़ा सा वाइडन करके रखना पड़ेगा। पेरिफेरल विजन खास तौर से, कि हम आसपास क्या देख रहे हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है ना। हमारा जो विजन है वो हमें एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी देगा, जैसे अभी हमारे फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे ग्रुप पे, और वो हमें ये भी अलर्टनेस देगा कि हमारे सामने क्या आ सकता है। सैनिटेशन या सैनिटाइजेशन का तो आपने एसओपी बनाया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमने हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड यूज किया है तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर देगा। मैं सभी लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, हमारा जो ऑर्डिनरी सोप सोल्यूशन है या सोप है या हाथ हम लोग साबुन से धोते हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वायरस का स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना होता है और उसको एक ही चीज डिस्ट्रॉय करती है, वो है साबुन। तो आप कोशिश करिए प्रैक्टिस में लाने की कि आपके यहाँ लोग रेगुलर इंटरवल पे हाथ धोते रहें, आप भी हाथ धोते रहें। मैंने अभी चेहरे को हाथ लगाया थोड़ी देर पहले, तो मेरे सामने मेरी टेबल पे एक छोटा पंप रखा है जिससे मैंने हाथ सैनिटाइज किया, क्योंकि मैं उठ के हाथ धोने नहीं जा सकता, बट ये हमें अपनी प्रैक्टिसेस में डालना पड़ेगा। हैंड सैनिटाइजर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड होने चाहिए। इस टाइम मार्केट में लोग आंख मीच के अपनी देश में जितनी डिस्टिलरीज हैं जो वाइन्स, विस्कीज या ड्रिंक्स बनाती हैं, वो अभी से सब ओवर टाइम चल रही हैं और सभी प्रोपेनॉल भी मार्केट में पुश कर रहे हैं, सॉरी मेथनॉल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का दूसरा कमर्शियल नेम इज प्रोपेनॉल और इथाइल अल्कोहल का दूसरा कमर्शियल नेम इज एथेनॉल, दूसरा नाम भी उसका एथेनॉल। तो मार्केट में इस टाइम बहुत सारे ऐसे आपके जो हैंड सैनिटाइजर हैं जिनमें प्रोपेनॉल की जगह इथेनॉल है, आप खरीदें तो लेबल देख के खरीदें। 70% कम से कम आइडियल सिचुएशन में, या कुछ अच्छे ब्रांड है उनमें कॉम्बिनेशन भी वो यूज करते हैं, कुछ ब्रांड्स एल्डिहाइड भी यूज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी यूज करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का फ्रीक्वेंट यूज नहीं होना चाहिए स्किन पे। और जो आप अल्कोहल सैनिटाइजर्स यूज करते हैं, आप मिनिमम 70% होना चाहिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि उससे नीचे वो इफेक्टिव नहीं होगा।
फिर से मैं कहता हूँ स्टेरिलियम जैसे ब्रांड है, उन्हीं का एक सिस्टर ब्रांड बैक्टोरा ब्लू भी है, जो हमने एक बॉम्बे में उनका इंपोर्टर और उनका पार्टनर है इंडिया में, बोडे केमी जर्मनी का, वो स्टेरिलियम के नाम से सैनिटाइजर्स बेचते हैं, उनका एक बैक्टोरा ब्लू भी आता है। हमने उन्हीं से एक माइक्रोबैक फोर्ट सोर्स किया है। माइक्रोबैक फोर्ट सरफेस डिसइंफेक्टेंट है ऑब्जेक्ट्स और सरफेस के लिए। उसको हम लोग स्प्रे में यूज करते हैं वाइप्स के लिए। उससे आप सरफेसेज हैं, टेबल सरफेसेज हैं, हैंडल बार्स हैं, रेलिंग्स हैं, आप उनको, या डोर पैनल्स हैं, आप उनको सैनिटाइज उससे कर सकते हैं वाइप करके। आप स्प्रे करके प्लीज बेफिक्र मत होइएगा, वाइप करके आपने सैनिटाइज करना है। और सरफेसेस के लिए उसी का 5% पानी में डाइल्यूट करके आप फ्लोर वाइप में माइक्रोबैक फोर्ट को, मैंने अविनाश जी को इंफॉर्मेशन भेजी है सारी टेक्स्ट में, वो थोड़ी देर में शायद ग्रुप पर शेयर कर देंगे आप लोगों को। हाँ, और सभी को एक एडवाइस दूंगा, सभी के डॉक्यूमेंट्स के साथ मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है, आप अपने आप को अवेयर जरूर करिएगा। माइक्रोबैक फोर्ट हमने इसलिए यूज किया क्योंकि माइक्रोबैक फोर्ट हम फॉगिंग में भी यूज कर सकते हैं, सरफेसेस में भी यूज कर सकते हैं, वाइप में भी यूज कर सकते हैं। ये एल्डिहाइड फ्री है, अल्कोहल फ्री है, इसको फूड सेफ भी मानते हैं हम लोग। किचन में भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आपकी किचन हैं, जैसे आपके स्टाफ के लिए किचन होती हैं, या खाना खाने का लंच एरिया होता है जहाँ टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, आप इसको वहां भी यूज कर सकते हैं। आप इसको फॉगिंग मशीन्स में भी यूज कर सकते हैं। जनरली जो आपके स्पेसेस हैं, इंटरनल स्पेसेस हैं, आप दिन में एक बार या 2 बार कम से कम, डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ द पीपल, नंबर्स कितनी है आपके यहाँ, उसके हिसाब से आप दिन में 2 बार या 1 बार फॉगिंग जरूर करिए। फॉगिंग करने में 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे। जिस स्पेस को आप फॉग कर रहे हैं उस स्पेस को आप बंद करके छोड़ दीजिए ताला लगा के 5 मिनट 10 मिनट, तो आप फॉगिंग यूज कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये सर्जिकल फैसिलिटीज में यूज होता है, जो मैंने आपको केमिकल सजेस्ट किया है। और चूंकि कुछ हॉस्पिटल्स इंडिया में हैं, उनके पास जॉइंट कमीशन की रेटिंग है, रैंकिंग है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल बोलते हैं उसको, JCI। उसका एक तो जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स है, उसका कुछ हॉस्पिटल्स के पास एक्रेडिटेशन है, कुछ के पास ये JCI का एक्रेडिटेशन है। तो वो हॉस्पिटल्स जो हैं वो सेफ्टी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी करते हैं, उनके यहाँ सर्जिकल फैसिलिटीज में यूज होता है, जो मैंने आपको सजेस्ट किया है। माइक्रोबैक फोर्ट नाम याद रखिएगा, इट इज एल्डिहाइड फ्री एंड अल्कोहल फ्री। अगेन, इट इज नॉट मेंट टू बी यूज्ड एज हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर के लिए मैंने अलग सजेस्ट किया है, सरफेसेस के लिए, फॉगिंग के लिए और वाइप के लिए मैंने अलग सजेस्ट किया आपको। तो ये 2 चीज हैं। इसके अलावा हमने, कस्टमर आपकी दुकान में कैश भी लेके आ सकता है, आपके पास कस्टमर ट्राई ऑन भी कर सकता है, प्रोडक्ट को पहन के देखेगा, उसको अच्छा लगेगा। और मैं सभी रिटेल को या अपने फ्रेंड्स को, इवन मैन्युफैक्चरर्स को ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास कंसाइनमेंट के बॉक्सेस पार्सल आते हैं, तो आप एक अल्ट्रा वायलेट C लैंप आती है, ध्यान रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट 3 टाइप की होती है, अल्ट्रा वायलेट A होती है, B होती है और C होती है। वायरस पे इफेक्टिव अल्ट्रा वायलेट C है। आप जब भी खरीदें तो प्लीज इंश्योर कि फिलिप्स की लैंप लगी हुई अल्ट्रा वायलेट C लैंप वाले ही एनक्लोजर्स खरीदें। मैंने अभी एक कोरोना क्लीनर .in से खरीदा हमने यहाँ दिल्ली में, वो IIT का स्टार्टअप है, उन्होंने थोड़ा पैनल्स को इस ढंग से प्लेस किया है कि वो लाइट को इंटरनली अच्छा रिफ्लेक्ट करे। तो उसमें 2 सेफ्टी फीचर हैं। उसमें लिड में एक माइक्रो स्विच लगाया उन्होंने कि अगर आप लिड खोलते हैं, अगर एक्सीडेंटली भी आपने उसका एनक्लोजर का लिड खोल दिया, तो अल्ट्रा वायलेट जो लैंप है उसकी पावर सप्लाई बंद हो जाती है। क्योंकि अल्ट्रा वायलेट C लैंप ह्यूमंस को एक्सपोज करने के लिए बिल्कुल नहीं है, इट इज अ हैजर्डस थिंग। ये ध्यान रखिएगा, इसमें अपना एक हैजर्ड है अल्ट्रा वायलेट C लैंप में। आप अगर अपने आप को एक्सपोजर देंगे तो इससे कैंसर भी हो सकता है। तो उस बॉक्स में ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है कि लिड खोलते ही वो पावर सप्लाई बंद कर देता है। उसमें टाइमर भी लगा हुआ है, जैसे आपने 10 मिनट का ट्रीटमेंट दिया तो वो 10 मिनट का ट्रीटमेंट करके अपने आप बंद हो जाएगा। तो मुझे उस हिसाब से थोड़ा अच्छा लगा, उन लोगों ने अच्छा डिजाइन करके बनाया। आप करेंसी उसमें डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा चांसेस है करेंसी से वायरस आने का। आप प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाते हैं, ट्राई ऑन करवाते हैं, तो आप उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ अच्छा बना हुआ उसका डिजाइन आप अपने स्टोर में प्लेस करिए, ताकि थोड़ा आपको कस्टमर कॉन्फिडेंस आए। कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि आप उसका ध्यान रख रहे हैं, उसकी सेहत का, हेल्थ सभी को अच्छी लगती है। तो आप ये अपने स्टोर्स में भी रख सकते हैं। मेरे को ये अच्छा सॉल्यूशन लगा। अब उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने बताया कि आप हाइपोक्लोराइट या सोडियम हाइपोक्लोराइट
लोग यूज कर रहे हैं, पोटेशियम हाइपोक्लोराइट यूज कर रहे हैं। जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है वो ब्लीच बोलते हैं। अभी हमारे फ्रेंड से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। ये आप बाहर की एरिया में, एक्सटीरियर में यूज करेंगे, इंटरनल यूज नहीं करेंगे हाइपोक्लोराइट का। अपने देश में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हैंड सैनिटाइजर को और सोडियम हाइपोक्लोराइट को सैनिटाइजेशन टनल्स में यूज कर रहे हैं। डिसइंफेक्शन टनल्स हैं, या जो गेट है या ऐसे पैसेज लोगों ने बनाया वहां यूज कर रहे हैं। सॉरी, बिल्कुल इस्तेमाल मत करिएगा, स्किन के लिए बहुत खतरनाक है। हाइपोक्लोराइट या ब्लीच का सोल्यूशन आपकी स्किन पे रैशेज कर सकता है, आंखों में चला गया तो आंखों में इंजुरी हो सकती है, और इससे क्लोरीन रिलीज होती है, आप उसको इनहेल करते हैं तो वो हेल्दी नहीं होती है। और इसके अलावा ये आपके कपड़ों पे अगर इसके छींटे पड़ जाएं तो कोई कलर वाला कपड़ा है तो उसका रंग उड़ा सकता है। थोड़ा ये कॉरोसिव होता है। आप सरफेसेस पर यूज करेंगे अगर, तो आप कोशिश करिए कि बाहर की सरफेसेस पर उसका एक डाइल्यूशन का मेथड है। कुछ जगह वो 2% डाइल्यूट करते हैं, कुछ लोग 5% डाइल्यूट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एरिया। कि जैसे हेल्थ फैसिलिटीज है वहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन यूज किया जाता है एक्सटीरियर में। और आप लोग इसको रिकमेंडेड डाइल्यूशन देख के उसका MSDS जरूर पढ़िएगा। और आप इसको जहां आपकी गाड़ियां आती है या बाहर के एरिया हैं सराउंडिंग, जहां लोग आते जाते हैं, पैसेजेस हैं, जैसे फुटपाथ हो गया, पब्लिक प्लेस हो गया आपके स्टोर के बाहर का, या बाउंड्री हो गई या पेरिफेरी हो गई, आप वहां यूज करिए, इसको अंदर मत यूज करिएगा। मैंने बार बार बताया इसमें क्लोरीन का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीज होता है। इट इज नॉट मेंट टू बी यूज्ड इंटरनली। काफी लोग यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट लोगों ने इसको डिसइंफेक्शन टनल में भी यूज किया। बॉडी पे स्प्रे बिल्कुल नहीं होने देना इसका। और जो मैंने माइक्रोबैग फोर्ट बताया वो भी बॉडी के लिए नहीं है। कहीं कोई आप ये ना करें, आप लोग डाल दें और वो डिसइंफेक्ट करना चालू करें। बॉडी के लिए कोई डिसइंफेक्टेंट प्रैक्टिकली नहीं यूज होता। आप सर्जिकल फैसिलिटीज में भी जाते हैं तो इवन सर्जन्स भी ऐसे किसी एरिया से कोई पास नहीं होते जहां उनकी बॉडी को मिस्ट या फॉग किया जाता है। वो भी अपने हाथ धोते हैं प्रॉपरली एज प्रोटोकॉल। वो अपने फेसेस को कवर करते हैं। और जो हाईली रिस्क पेशेंट होते हैं HIV के या कोरोना के, अगर उन पर सर्जरी की जाती है तो सर्जन्स भी PPE सूट पहनते हैं। सर्जिकल स्टाफ जितना होता है, आपके एनेस्थेटिस्ट हैं या नर्सिंग स्टाफ होता है, सभी लोग PPE सूट पहनते हैं। उनके सूट और उनके ग्लव्स उस टाइम स्पेशल ग्लव्स होते हैं, 3-3, 4-4 लेयर ग्लव्स की पहनते हैं। क्योंकि अगर वो ब्लेड यूज करते हैं, अगर एक प्रिक लगता है तो जो सर्जन्स हमारे देश में है, आप उनका अंदाज लगाइए, वो तो तलवार पे लटके हुए हैं हमेशा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उनके लिए भी डिसइंफेक्शन टनल्स नहीं होती हैं, वो हाथ धोते हैं, मास्क पहनते हैं। इसके अलावा आप हाइपोक्लोराइट, दावानम जी, रमेश जी, आप एक काम कर सकते हैं, आप लोग अपने स्टोर के बाहर मैट को उसमें सोक करके रख सकते हैं। What happens is any customer walking in with his shoes on, कुछ लोग शूज बाहर भी खुलवाते हैं। मैं ये कहूंगा अगर आप शूज बाहर खुलवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शू कवर मशीन में भी इन्वेस्ट करिए। वो शू कवर डिस्पेंसर होता है, ताकि कस्टमर स्टोर में वॉक इन करता है तो वो शू के ऊपर कवर पहन के उसमें आप यू प्लेस योर फुट एंड इट कवर्स योर शू ऑटोमेटिकली। तो दैट कुड बी अ सेफ प्रैक्टिस। थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन अगेन लुकिंग एट द हेल्थ बेनिफिट्स इट इज सजेस्टेड। क्योंकि जहां वॉक-इन्स होते हैं, यू नेवर नो कि कौन कैरियर है और किसके शू सोल्स के साथ भी वायरस आ रहा है, यू नेवर नो दैट। क्योंकि अपने यहाँ देश में लोगों को एक चीज की आदत बहुत खराब है, एंड यू विल फाइंड इट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, व्हिच इज स्पिटिंग। वी स्पिट एवरीवेयर, वी स्पिट ऑल द टाइम। हम लोग ड्राइव करते हैं तो स्पिट करते हैं, हम किसी के स्टेयर केसेस में चढ़ते हैं तो स्पिट करते हैं, हम किसी के टॉयलेट यूज करते हैं तो स्पिट करते हैं, हम वॉक करते हैं तो स्पिट करते हैं, पार्क में स्पिट करते हैं, फुटपाथ पे स्पिट करते हैं, रोड पे स्पिट करते हैं। सो अपने यहाँ थोड़ा सा ये गवर्नमेंट के सामने चैलेंज है कि 135 करोड़ की जनता को एजुकेट करना कि भैया तुम थूको मत। अपने देश से ट्यूबरक्लोसिस नहीं खत्म हुआ है बिकॉज ऑफ दिस हैबिट, और कोरोना भी खत्म नहीं होगा अगर हम लोग थूकना नहीं बंद करेंगे। तो अपने लोगों को, अपने स्टाफ को, हमने एक दिल्ली गवर्नमेंट ने एडवाइजरी सभी फैक्ट्री ओनर्स को भेजी है, बिजनेसेस को, कि आप अपने स्टाफ में डिक्लेरेशन ये साइन करवा के रखिए अपने पास। हिंदी में है वो, और उसमें सबसे पहला क्लॉज यही है कि मैं थूकूंगा नहीं कहीं। तो मेरे को ये लगता है कि थूकना और स्पिट करना इज वन प्रॉब्लम एरिया इन आवर कंट्री, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, जहाँ लोगों को पता नहीं इससे क्या रिलीफ मिलता है। बट यू नीड टू बी केयरफुल। आप लोगों को अगर शूज का सोल्स किसी का सैनिटाइज करना है, यू कैन ऑफ कोर्स यूज सोडियम हाइपोक्लोराइट सोक्ड मैट्स। यू कैन प्लेस ट्रेज एज वेल आउटसाइड, जिसमें आप मैट रख सकते हैं जो सोक किया हो, या कुछ लोग स्पंज भी यूज कर रहे हैं जिसमें वो लिक्विड को पोर कर देते हैं। व्हेन यू कम इनसाइड यू शुड हैव योर feet soaked into that then only enter the premises.
तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। अभी संजय काला जी ने पोस्ट किया माइक्रोबैग पोर्ट, हाँ ये करेक्ट है, ये मैंने अविनाश जी को भेजा था, उन्होंने शायद सारे लिंक पोस्ट कर दिए होंगे। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। हेल्थ, मैं फिर कहूंगा, अगर फैक्ट्री में एक आदमी, वर्क प्लेस में एक आदमी बीमार पड़ने का मतलब है आपकी फैसिलिटी पे ताला लगना। इट्स जस्ट लाइक फायर, जैसे किसी की बिजनेस में आग लग जाती है, that business goes out of business, that business is closed. Similarly, if a person gets infected with corona, even a single person getting corona infected at your workplace could mean a temporary closure and huge losses to your business. तो ये कुछ चीजें हैं, मैंने बहुत सारे लिंक शेयर किए हैं, अविनाश जी को भी भेजे हैं। आप लोग अपना भी इसमें जो है वो सोच का या दिमाग का उपयोग कर सकते हैं। आपको जो सोर्स करना है तो बेंचमार्क क्या होना चाहिए, मैंने जो लिंक भेजे हैं उसमें सभी के साथ मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जरूर है। वो सभी को कहूंगा कि कोई भी मटेरियल पढ़े बिना मत यूज करिए, उसका एमएसडीएस जरूर पढ़िए, आपको अवेयरनेस आएगी इससे क्या प्लस होता है और क्या माइनस होता है। इवन जो हम लोग कॉमन मेडिसिन खाते हैं उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसी तरह ये सब जो चीजें यूज करते हैं इनमें सबके साथ कुछ ना कुछ जरूर आता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए सबको। और बाकी ये चलता रहेगा, रोज हम नई चीज आएगी, रोज नई सीखेंगे, और हमारे पास अब ये सीखने का ही टाइम है। I think I have to show one, Ashok ji, we have made some posters in the outlet where we have kept, I think all should keep posters like this. In the entire outlet, we have put everywhere to educate the customer. And Karel ji, we are using this handheld ultraviolet scanner. Is it okay? No? No, because in any case it could be, the radiation could be happening on your skin. Please don't do that. We are using the what do you call that, specs, the black specs. And no, of course it is, you may be protecting your eyes, sir, but you are not able to protect your body. Okay. UVC is very dangerous. Please be careful. Okay. Very dangerous. But only it can protect these eyes, not very much. Only eyes, not other things. Because we are getting exposure to your hands, to your skin, everything. Okay. But we are putting gloves, we are not keeping outside, we are in the boxes and doing. If you are not, I have suggested a link there. It is, the box supplier is coronacleaner.in. They are making fantastic boxes. And it is a startup of IIT graduates. Apart from that, आप छोटे boxes लेके आप UVC lamp को अंदर fit करके switch बाहर रख सकते हैं. But make sure you switch off the light before you open the box. Okay, that we are doing. Yes. But I think we should put the posters everywhere. Yes, whatever awareness, spreading awareness is always useful. You need to place stickers, posters, and information at every place with hand sanitizers, with foot mats, with shoe cover machines, or with whatever you are using in your workplace. You need to have some information there, displayed clearly and correctly, so that people are aware that you are trying to take care of everyone around. That message should be loud and clear. करेल जी, आपकी बातों में आपने जो डिटेल से समझाया है उसमें जो हम सिर्फ सैनिटाइजर और ये सब ब्लीचिंग की बातचीत कर रहे थे इन वेरी वेग लैंग्वेज, उसको आपने उतना परफेक्ट तरीके से समझाया है। ये हर एक सेक्टर के लोगों के लिए ये यूजफुल हो जाएगा। ये फैक्ट्रीजों में भी सेम रूल लगेगा, ये होलसेल ऑफिसेज में भी यूज आ सकेगा, ये रिटेल शॉप्स में भी यूज में आ सकेगा। सबको अपनी अपनी तरह से यूज करना है इफेक्टिवली। इसमें कोई आप कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। इसमें बहुत बाजार में सस्ते प्रोडक्ट आज की तारीख में अवेलेबल है। इतनी सारी कंपनियां जिनका नाम कुछ पता नहीं था, वो सारी कंपनियां आज ये बेचने लग गई है और 50-50, 70% भी डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। बट हकीकत में देखें तो उनके प्रोडक्ट में शायद दम नहीं है। तो इसमें आई थिंक देयर इज नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज। एट द एंड ऑफ द डे वी विल पे अ वेरी बिग प्राइस इफ देयर इज अ प्रॉब्लम क्रिएटेड। तो ये एक आपने बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आपने ये समझाया है। अभी जो रिटेल के अंदर जो इश्यूज आएंगे, नितिन जी आप कुछ इसके बारे में थोड़ी लाइट कीजिए सर।
सर मैं रिटेल के अंदर ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज करके ले जाना चाहता हूँ, पर उसके पहले कड़ेल जी की बात को और लाइटर नोट एक चीज बताना चाहता हूँ। कड़ेल जी, इतने सारी चीजें यूज करना और बार बार ये बोला जा रहा है कि अल्कोहलिक रहने से वो कोरोना वायरस मर जाता है, उससे तो पेट में टंकी फुल कर रखे रखो, अल्कोहल से तो फिर कोरोना वायरस ऐसे अंदर मर जाएगा। सर मैंने 2-3 दिन ऐसी कोशिश की थी जब लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद मेरे फैमिली मेंबर्स ने कहा कि तुम पता नहीं क्या क्या अंट शंट बोल रहे थे उस टाइम, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो पेट में का कोरोना वैसे खत्म हो जाएगा, टंकी फुल रखो सर अपने अल्कोहल के साथ में। नहीं, एक्चुअली बॉडी का अपना मेटाबॉलिज्म होता है। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अल्कोहल बॉडी में जाने से कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म नहीं होगा। ये प्रोटीन है, जब ये बॉडी में जाता है इट लैचेज ऑन टू योर बॉडी सेल्स, और अल्कोहल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अशोक भाई, अभी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, मुझे तो एक चीज समझ में आई कि अभी जो कड़ेल जी की बातें सुन के कि वी हैव टू डेवलप द हैबिट टू चेंज अवर हैबिट्स, अभी हमको आदत बदलने की आदत डालनी पड़ेगी। एंड नो वन इज बोर्न विद द इंस्ट्रक्शन बुक्स। तो जैसे जैसे हम आगे आते रहेंगे, हमारे को प्रॉब्लम आते रहेंगे, हमारे को नए नए इंस्ट्रक्शन हम माइंड स्पीक के थ्रू भी देते रहेंगे। मैं अभी थोड़ा शोरूम के अंदर ले जाना चाहता हूँ लोगों को, खास करके रिफर करके। सर हमको गवर्नमेंट के गाइडलाइंस कुछ आई है, कड़ेल जी ने तो बहुत अच्छा समय समझा एक सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से। गाइडलाइंस ये है कि 30 से 50% तक के अलग अलग स्टेट में गाइडलाइंस आएंगी कि आपके स्टाफ को आपको बुलाना है। और इस चीज को बहुत लोग लाइटली ले रहे, जहां ओपन हो गए, बोले हमारे कुल 10 आदमी का तो स्टाफ है, कौन आके चेक करेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमको अभी प्लानिंग कर लेना चाहिए कि हमारे यहाँ का स्टाफ, और फिर होता ही है कि स्टाफ कम करना है, ये भी एक आर्ट है, क्योंकि अलग अलग फ्लोर होते हैं, अलग अलग स्पेशलिटी होती है। डायमंड्स सेल करने वाला, कलर स्टोन, गोल्ड परचेस करने वाली टीम अलग होती है, कैशियर्स अपने अलग अलग होते हैं। तो ये सब लोगों को हमको स्मार्टली डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे जैसे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन आएंगे डे वाइज उसको हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे ही हम शोरूम के अंदर जाते हैं तो हमको सबसे पहले तो क्या है कि स्टाफ जा के शोरूम चेक करके आए थे। हमको हमारी पूरी इन्वेंट्री ओपन करके उतावल न करने की बजाय 2-4 घंटे चाहे हमारे शटर बंद रहे, अंदर जाके हमारी इन्वेंट्री को पूरी, जैसा हमारा कंप्यूटर या हमारा जो स्टॉक बुक बता रहा है उस हिसाब से फिजिकली पूरी इन्वेंट्री को चेक करना पड़ेगा। जब आप फिजिकली इन्वेंट्री चेक करने के लिए जाएंगे तो आपको हर इन्वेंट्री का फिजिकल पोजीशन क्या है, उसका स्टोन डिकलर हुआ है क्या, उसमें कोई फंगस लगा है क्या, उसमें कुछ डिकलर हुआ है क्या, कुछ इफेक्ट हुआ है क्या, सारी बातें हम लोगों को उसकी चेक करनी पड़ेंगी। और जो स्टॉक हमको लगता है कि 2, 2.5, 3 महीने पड़े रह के फिर भी धूल अंदर जाती है काफी एरिया में, उसको हमको वापस क्लीनिंग कराना पड़ेगा। जो बंगाली भाषा में चटका बोलते हैं, रोडियम है, वो पूरी एक्सरसाइज हम लोगों को उसमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी अलग सब्जेक्ट है कि इसको जो डैमेज हुआ है उसको इंश्योरेंस कंपनी हमारे को उसका जो नुकसान होगा वो कंप्लायंसेस देंगी या नहीं देंगी। अब हमारा जो स्टाफ है उस पे बहुत सारी ट्रेनिंग ले चुका है, माइंड स्पीक से ले चुका है, प्राइवेट एजेंसी से हमने ट्रेनिंग कराई है। लेकिन हमको जब हमारे प्रीमाइसेस के अंदर आएगा तब ऑन ग्राउंड काफी सारे बड़े बड़े शोरूम जो ओपन हुए उन्होंने बताई है कैसे एंट्री होगा, कैसे कैश गिनी जाएंगी, कैसे पहना जाएगा। ये इसका हमको हमारे शोरूम्स के अंदर किसी का 2 स्टोरी या 6 स्टोरी, उनको पूरी ट्रेनिंग ऑनलाइन वहां पे उनको वहां ऑन स्पॉट देनी पड़ेगी, जो प्रैक्टिकल और ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग होंगी। उसके बाद में हम लोगों को जो स्टाफ की ट्रेनिंग के पहले स्टाफ लोगों की जो अभी इन्होंने बताया द्रोणम रमेश जी ने कि उन लोगों की जो फिजिकल चेकिंग करना है हम लोगों को, तो हमको कोई ना कोई एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी। हम उतने एक्सपर्ट्स नहीं है, किसी डॉक्टर को किसी को बुला के हम लोगों को एक बार एटलीस्ट हमारा जो पूरा स्टाफ है उन लोगों को पूरी चेक करना पड़ेगा। एक चीज जो गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि आरोग्य सेतु जो ऐप है ये हम लोगों को हमारे स्टाफ के अंदर कंपलसरीली कराने पड़ेंगे। अगर कोई डिवाइसेस के अंदर करने से उसे पता लगता है कि उसके पास में है, हमारे मोबाइल में रखना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है एक स्टेप आगे जाके हमारे जो कस्टमर आके गए हैं, एक पर्सन ऐसा हमारे में का इतना काम तो रहेगा नहीं, कस्टमर का मोबाइल 1 मिनट हाथ में लेवे और उसके इसमें आरोग्य सेतु चेक करे और आरोग्य सेतु डाउनलोड करे, जिससे पता लगता है कि कोविड इन्फेक्टेड पर्सन आया है कि नहीं, आपके पास गया कि नहीं गया। विजिटर्स का रजिस्टर हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई आदमी इन्फेक्टेड आता है, देता है या हमारे से लेके जाता है, तब इतनी सारी एजेंसियां परेशान करती है, पुलिस और ये सब, और वो फिर आप लोगों को कैमरा बताती है, आपके यहाँ का फिजिकल चेक करती है। आप अगर कस्टमर का या अपने आप विजिटर्स का नाम नहीं बता पाते हैं तो उसके लिए वो एक कायदे से गंभीर बात हो जाएंगी। मतलब नॉट ओनली फॉर सेफ्टी, ये कंप्लायंसेस का भी प्रॉब्लम आएगा। मुझे लगता है कि वो भी हम लोगों को करना चाहिए। उसका एक फायदा भी है सर, काफी लोग अपने कस्टमर का डेटा रखते नहीं है। कस्टमर का डेटा रखते हैं तो बोलते हैं बिल में तो उसका नाम नंबर आ जा रहा है, तो मैं तो बोलता है ये गोल्डन चांस है। उसके साथ में जितने भी लोग आ रहे हैं, 5 लोग 7 लोग, एक आदत होती है ज्वेलरी लेने जाते हैं, शादी की कलेक्ट करने आते हैं, पूरे लोगों का डेटा इकट्ठा करिए ताकि आपका डेटा बैंक जो है वो आपका बहुत बड़ा हो जाता है।
तो हम लोगों को ट्रायल जो है, कस्टमर जो पेन के देखने की ट्रायल लेते हैं, उसके लिए हमने माइंडस्पीक के अंदर जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, ये सारी चीजों को आज हम लोगों को हमने ले रखी थी लेकिन इफेक्टिव यूज नहीं कर रहे थे। ये सारी चीजों को हमको विद इन वीक हम लोगों को इसके एक महीने जैसा पहले कहा था और मेरे से अशोक भाई ने एक्सपेक्ट भी किया था वन लायर में, वी हैव टू डेवलप द हैबिट, चेंजेस अवर हैबिट्स। हम लोगों को ये आदत बदलने की आदत डालनी पड़ेगी और सारी चीजों को फिर से रिवैम्प करना पड़ेगा। और पोस्ट कोविड जो है वो पूरा तरीका बदलने वाला है। जैसा सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस आ रही है। इवन सर अगर टैक्स में भी देखेंगे आप, तो जो हम लोग पैदा हुए थे जब के टैक्स और आज के टैक्सेस में चेंजेस आ गए। आज हमारी काम करने की पद्धति भी चेंज होने वाली, बीमारी भी जो है आउट ऑफ सिलेबस है। जो बीमारी आज आई है ये किसी डॉक्टर के सिलेबस में नहीं थी, तो हमारे लिए भी जो ये समय आया ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो हमको टोटल रिवैम्प करना पड़ेगा। आई थिंक मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। हाँ, गौरव जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके बारे में? हम जैसे कि और तो काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर हो गए। मेरा एक्चुअल में अभी ये था कि अब हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। एक्चुअल में जब हमने फैक्ट्री चालू करी तो हमारे पास मेटल का शॉर्टेज था, किसी के पास फंड्स का शॉर्टेज था। तो इट्स जस्ट एन आइडिया कि हम लोगों ने किसी स्टोर्स वालों को फ़ोन किया क्योंकि वो लोग खुले नहीं थे, तो उन्होंने बड़ी इजीली दे हैव सप्लायर्स द मेटल, चाहे हमने पैसे भी नहीं दिए, सर ऑन एन अकाउंट। तो एक इस तरह की नेचर डेवलप होनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों को ग्रुप बना के ही काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों के पास अभी रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, चाहे अपन स्टोन्स ले लें, चाहे टूल्स ले लें, क्योंकि हमारा सिटी एरिया अभी भी क्लोज्ड है, कर्फ्यू एरिया में है। सो व्हाट वी हैव डन, हम सीतापुर एसोसिएशन के हम लोगों ने मेंबर्स की एक लिस्ट बनाई है कि हम लोग आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो एटलीस्ट कोई चीज़ मेरे पास शॉर्ट है तो दूसरी फैक्ट्री मुझे दे दे, या उसको कोई जरूरत है तो आई कैन हेल्प आउट। सो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट वे। अभी एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए, जब तक ये और सोशल डिस्टेंसिंग और मेंटेन करनी है, तो ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब हम एक दूसरे के काम भी करके जॉब पे एक दूसरे की हेल्प करें, एटलीस्ट कि हमारा प्रोडक्शन चलता रहे। तो आपकी सलाह होलसेल वालों के लिए कुछ है? नहीं, होलसेल का अशोक भाई मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा और भी पॉइंट, जैसा इन्होंने सब्जेक्ट छेड़ा है। तो सर ऐसा है कि अभी एक शोरूम मेरा ओपन हो गया जो वाशी में 85 किलोमीटर अवे है। मैं पिछले 15 दिन से वहां जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, जो चीज हमारे पास में थी वो सेल हो चुकी है और जो और रखी हुई है उसके लिए कस्टमर नहीं है। तो आज पोजीशन ये है कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि रानीहार करके जो एक प्रकार आता है, और भी किसी के यहाँ कुछ हो सकती है। आज वो मुझे पास सैंपल भी नहीं है, मैंने तो ठीक है दूसरे शोरूम ओपन करके दे दिया। अब मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप कस्टमर को कन्विंस करो कि सैंपल लाइन बताओ और उनके ऑर्डर लो, ताकि जो भी 5-7-10 ऑर्डर हो जाएंगे हम दे सकेंगे। क्या हो रहा है कि कुछ चीज के तो सैंपल भी बचे नहीं और कुछ चीज का कस्टमर भी नहीं आ रहा है। तो ये हम लोगों को बहुत जरूरत है अभी रिटेल होलसेल के अंदर कि आप ऑर्डर की आदत डालो। दूसरी बात, हमने हमारे व्हाट्सएप किया, SMS किया है कि आप आने के पहले आपको क्या चाहिए उसके बारे में हम लोगों को पहले डिटेल बताइए। होता ये है कि आने के बाद उसको नहीं दिखता है कुछ चीज तो उसका मूड खराब होता है। और कस्टमर अगर एक दिन पहले आके बोल के जाता है बढ़िया डेटा है हमारे पास में, तो हम वो चीज हमारे दूसरे शोरूम से अवेलेबल करवा के रख रहे हैं। तो आज हमारे चारों शोरूम के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ है, 4 में से एक ही शोरूम खुला है, तो हम लोग स्टॉक निकालते जा रहे हैं, उस शोरूम में प्रोवाइड करते जा रहे हैं। प्रसाद तो इसके अंदर एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है कि जो शोरूम ओपन होने के बाद में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया, कस्टमर ने 44 से 45 के रेट में बुक किया था। कुछ लोगों ने, हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि आपको रेट फिक्स करना है कि अनफिक्स करना है, तो कस्टमर को हम लोग लिखा के लेते हैं। लेकिन जो अनफिक्स रेट के अंदर कस्टमर आ रहा है, 50,000 रुपए का रेट हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है। वो बोलता है कि मैं तो लेने को तैयार था, आपका शोरूम बंद हो गया, मैं गवर्नमेंट में कंप्लेंट करूंगा कि आप मेरे को रेट के अंदर नहीं दे रहे, गवर्नमेंट ने काफी चीजों को दिया है, आप लोगों को किया है। अब 44,000 में जिसने सोना बुक किया था लेकिन रेट फिक्स नहीं किया था, वो अब बोलता है कि मुझे 44,000 45,000 के अंदर चाहिए। तो इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है और कस्टमर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है, जिसपे हमने क्लियरिटी ली थी, लेकिन कस्टमर इसका डिसएडवांटेज लेना चाहता है, कंप्लेंट की बात करता है। कोई भी आदमी भले कितना अपना मजबूत रहे, लिटिगेशन में नहीं जाना चाहता है, चाहे कंज्यूमर कोर्ट हो। ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि और जगह पे भी आएंगी। और एक बात और हो रही है कि जैसे शोरूम ओपन हुआ, हमारे जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, सप्लायर है, उनके फोन शुरू हो गए कि आपका एक शोरूम ओपन हो गया, अब एक अनार और 100 बीमार। सर अभी ऐसा हो गया है कि एक शोरूम ओपन हुआ है, उसके अंदर कम वॉल्यूम में बिजनेस हो रहा है और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स के फोन शुरू हो गए कि पेमेंट दीजिए, आपका ओपन हो गया है। तो एक शोरूम, जो 4 शोरूम के अंदर इन्वेंटरी स्प्रेड हुई थी, वो एक शोरूम के भरोसे तो हम उनको सप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके अंदर आ रहा है कि करना है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब हमारा मेजर काउंटर्स ओपन हो जाएंगे, हमने
लोगों को पीटीसी दे रखी थी, कई लोगों को हमने टाइम टेबल बना के रखा था कि जैसा ऐसा पेमेंट आएगा दिए जाएगा, उसको पूरे टाइम टेबल को हमको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और उसका कम्युनिकेशन मेल द्वारा हमारे जो भी सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर, उनको देना पड़ेगा कि उनको भी क्लैरिटी रहे कि हमारा पेमेंट कब आने वाला है और हमको भी क्लैरिटी रहती कि हमको उनको पेमेंट कब कब कैसा देना है। वो हमारा कंजर्वेटिव प्लान जो है। अब इसके बाद में एक सबसे बड़े ओपनिंग के पहले जो मुझे लगता है बात बतानी चाहिए अशोक भाई, कि वो ये है कि पिछले 2 महीने के अंदर काफी सारे गवर्नमेंट ने नए नए अनाउंसमेंट दिया है, काफी सारी नई नई चीजें दी है। उसके ऊपर हमारे सीए के साथ विद इन हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उनके साथ बैठ के पूरी पॉलिसी को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। और मैं आगे उसके बारे में भी बताऊंगा कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट उनसे कैसे करना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स मेरे एक शोरूम ओपन होने के बाद में रेट क्या है, पार्टियों क्या है, ये सारे मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ओवर टू अशोक भाई। नितिन भाई, एक और आपकी बात थोड़ी कंटिन्यू करिए आप। सर, एक चैलेंजेस जो अभी हम इसके चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जो है खुलने के बाद के आप क्या क्या देख रहे हैं, और आपके हिसाब से दुकानें खुलने के बाद में लोगों को इसमें से क्या फायदा हो सकता है उस पोस्ट कोविड का, वो आप थोड़ा सा हाईलाइट करिए जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें निकल आए। सर, पोस्ट कोविड के अंदर मैं आपको बता देता हूं, अभी एक शोरूम खुला है लेकिन अभी छोटा सिटी है तो लोगों को घर पता होता है। कम से कम 25 से कस्टमर पिछले 2 महीने में घर पे आ चुके हैं कि अपना मैरिज हमारी पोस्टपोन्ड हो गई, मैरिज कैंसिल हो गई है और अभी हमारी पोस्ट दिवाली है या फिर हमने घर के गहने देके पूरी कर लिया, हमको पैसा वापस चाहिए। रेट के स्ट्रक्चर के लिए घर पे आ रहे हैं। बेचने वाले जो कस्टमर है वो घर पे आके पहुंच गए, एड्रेस निकाल के वहां पे सिक्योरिटी से उससे बात करके, और वो लोग चाहते हैं कि हमारा जो सोना है उसका पैसा दे। तो ओपनिंग होने के बाद में तो हमको सेल भी होगा, परचेज भी होगा, और बाहर से ज्वेलरी जब गोल्ड आएगा नहीं तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग चालू रहेंगी, तो हम तो उसकी घबराहट नहीं है कि चूना सोना आएगा, उसका यूआरडी परचेस होगा, उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे और उसको हम पैसे दे भी देंगे क्योंकि हमारी भी रिक्वायरमेंट रहेंगी। लेकिन अभी 1 पीरियड के अंदर भी जो लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कैंसिलेशन का जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आपने तो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कर ली है और रेट की वजह से और मैरिजेस और पोस्टपोन होने की वजह से और उन लोगों का जो बजटिंग डिस्टर्ब हो रहा है 44 से 50 के बीच में, ये मैंने आपको बताया है। अभी जो स्टाफ है इनका जो हेल्थ का जो है प्रॉब्लम, ये जो इंश्योरेंस पहले जो कराया था सर, उसमें कोविड या कंटेजेंट डिसीज इंक्लूड नहीं थी, उसके अंदर बहुत सारे डिसीज इंक्लूड थे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि सारे चीजों को हमको रिवाइव करना पड़ेगा, A to Z चीजें हमको रिवाइव करना पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो जब त्योहार के दिन आएंगे, अभी कोई गुरु पुष्य आ जाएगा, सब आ जाएगा, उस समय नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उसको मेंटेन करें, क्योंकि कस्टमर को एंट्री कैसे दे, क्या टोकन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और सप्लाई एक सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है अशोक भाई, कि जो चीज हमारी सेल हो चुकी है वो चीज का वापस से प्रिक्योर करने के लिए गोल्ड अवेलेबल नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो छोटे सिटी के अंदर जो है लॉजिस्टिक अवेलेबल नहीं है, तो वो एक सबसे बड़ी उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को लगता है इसमें और कोई क्वेश्चन आते हैं तो अपन और भी देते हैं कि जो मुझे प्रैक्टिकल दिखी मेरे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है, डिमांड और सप्लाई के अंदर रेशियो में डिस्टर्ब है। रमेश जी, I would like to ask you how you are maintaining social distancing in your retail outlet, and what is your advice? Thank. Avinash ji, हाँ. No, now what we have थोड़ा done, थोड़ा we are removed 50% of the chairs in the showrooms. Normally we used to keep at least 1 feet or 1.5 feet distance between 2 chairs. Now we have made 3 feet. So we remove the chairs from the floor itself. So that what That happens? is the customer. Yeah. For the customer or for the salesman? No, for salesman normally it will be inside. There's not much. For the customers, sales actually So how close are your salespeople sitting? Minimum 6 feet. We have, because we have each counter, it is around 6 feet. They are maintaining it. For customer, we have kept one counter only. Earlier we had 4 chairs. We have made 2 chairs now. So we are 50% reduction. But sometimes what happens, they pull the chair together to sit and see. These are all the issues. Number 2, I think Kandalwalji, I want to ask you one more thing. Under the loss of the force majeure, can we take on the shelter of this gold price hike, the delivery sort of, even what happened, a lot of people sent online price amount on the day of lockdown. Suddenly lockdown announced. Neither we could buy gold nor we could process. So this all, but I think can that force majeure clause can be applied here. It's a act of God. So I think
the issues have started now. We are trying to convince, we are trying to reduce our margins, and we are not getting into litigations as such, because now we have to maintain the customer's confidence and their loyalty. So we are trying to resolve it. Of course, it is too short time to decide. Wait to see what happens. And basically, sir, I think Ashokji, social distance. I think since our shop is very huge, around 6,000 to 8,000 square foot, we have better space to manage. If the customers are huge in one floor, we shift it to second floor, then third floor, like that. But that should not. But what happens in the market, especially in our Avenue Road, just like your Zaveri Bazaar, where shops are itself is crowded. I think it will be a little tough time to handle it. I think there we have to I think all crowded markets are going to be a big challenge for social distancing. Especially. Karelji, what is the social distancing you are going to manage? Karelji जी अभी दूसरे काम में बिजी है। अशोक भाई, जैसा इन्होंने बताया अभी रमेश जी ने, तो जितना अक्षय तृतीया को हमने ऐड किया था और जिन लोगों ने ऑनलाइन परचेस किया उसको तो हमने पूरा हेज कर लिया है पूरी पोजीशन को, तो उसमें हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने उसमें क्या किया, कस्टमर ने जैसे 5 लाख डिपॉजिट किया, अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, हमने उसको कैलकुलेशन किया, उसका कितना ग्राम सोना हमने बुक किया, उसका व्हाट्सएप कंफर्मेशन हमने उसको दे दिया और कस्टमर को बोला कि जैसे ओपन होता है आपका प्रूफ लेके आइए कि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया था ये प्रूफ है और इसका हम आपको रिसीव करके दे देंगे। तो जैसे ओपन होता है तो पहले वीक के अंदर हमको सबसे बड़ी अगर एक्सरसाइज कोई करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी कि 2 महीने के अंदर जो भी हमारे पास ऑनलाइन ट्रेडिंग हुआ है, हमने कस्टमर को काफी सारा माल बेचा है, काफी सारा रेट की वजह से सोना बुक किया है, उन लोगों को कंफर्मेशन लेके उनका जो रेट था उसको एक एक को बैठा के बुला के पूरा करके 1 वीक चला जाएगा। पूरी जो करीब मुझे ऐसा याद है कि 140-45 एंट्री है वो पूरा सेटल करना पड़ेगा ताकि वो पूरा स्ट्रीमलाइन के अंदर आ जाए उसके अंदर। तो ये एक हमने उसके अंदर किया है। दूसरा एक हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि जैसे ओपन होता है हम लोग व्हाट्सएप, हमने अशोक भाई मैंने पीछे बताया था, हम लोगों ने करीब इस पीरियड के अंदर बैठे घर पे काम किया कि हमारा जो कस्टमर का डेटा था, जो लर्नेड कस्टमर है उनके पूरे ग्रुप बना दिया, डॉक्टर का अलग, वर्किंग वुमेन्स का अलग, लेडी डॉक्टर का अलग, करीब 12,000 लेडीज वर्किंग वुमेन्स का हम लोगों ने जो डेटा किया था उनको हमने सेग्रीगेट करके उनका एक सॉफ्टवेयर के द्वारा और हमारे मोबाइल के अंदर ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लिया। तो हम कस्टमर को इंफॉर्मेशन देने के लिए सोशल मीडिया का बहुत जबरदस्त यूज करने वाले हैं ओपनिंग होने के बाद में, और उसके अंदर सबसे इजी मेथड है वो SMS, व्हाट्सएप, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, फिर सोशल मीडिया के अंदर हम फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उससे तो जाएंगे ताकि खर्चा कम हो, डायरेक्ट हम लोगों को उनको मैसेज दे सकें। तो ये बहुत इकोनॉमिक वे ऑफ मार्केटिंग हो जाएगा, जहाँ पर लोएस्ट कॉस्ट पे आपके पास जो प्रेजेंट डेटाबेस है उसका पूरा सदुपयोग करके उसका पूरा एडवांटेज ले सकेंगे, आपका इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा और आपको हकीकत में देखो तो मिनिमम कॉस्ट पे आप कर सकेंगे। इनफैक्ट अशोक भाई 50,000 रुपए महीना एजेंसी लेती है सोशल मीडिया मैनेज करने का। इस पीरियड में हमने 50,000 रुपए देके हमारे इन हाउस स्टाफ को ट्रेन कर लिया है ताकि वो जो हमारा स्टाफ है ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग फिश टीच देम हाउ टू फिश, वो हमने काम कर लिया है कि उनको हमने वो ट्रेनिंग दे दिया, तो हमारा इन हाउस मैनेजमेंट टीम है उसको कंट्रोल कर लेंगी पूरी तरह से और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कराएंगे। फैंटास्टिक। Yeah, Ramesh. I think now we started showing jewelry at house. We're trying to go and collect the cash. So even telling one of the HNI customers may not come, because they also basically HNI customers, they're a little bit reluctant. The ego issues, attitude issues we have. We're trying to sort it out them also. We're trying to call them. We'll come and show you. I think that's the best way of doing it. I think we have practically gone through everything. Is there? I would like to offer each and everyone about 2.5 minutes on your closing notes. So starting from Gaurav ji, आपके closing notes कुछ बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं ओवरऑल? मैं तो ये कहूँगा भी कुछ इससे पहले एक सजेशन है। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग कई लोगों के कई मेंबर्स के फोन आते हैं, सब लोग बहुत पैनिक हैं जस्ट टू ले ऑफ की या तो स्टाफ कम करें या सैलरी कम करें 25%। बहुत सब लोगों से कम्युनिकेशन हुआ, सब लोगों का यही व्यूज था कि यही करना पड़ेगा, लेकिन मेरा एक सजेशन था उसमें लास्ट में फिर हम लोगों ने सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि जिन फैक्ट्रीज के काम है वो लोग एटलीस्ट 8 आवर्स की जगह 9 आवर्स अ डे वर्किंग कर लें, तो एटलीस्ट उनको एक घंटा एक्स्ट्रा स्टाफ से काम करने को मिल जाएगा
और जिन फैक्ट्रीज के पास काम नहीं है वो लोग 5 days a week 4 days a week कर लें, एटलीस्ट सैलरी कम नहीं करें और स्टाफ कम नहीं करें, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। और हमारे जो भी यहाँ लेबर हैं सब बंगाली ज़्यादा हैं जयपुर में, तो वो लोग सब मूव करने लग गए हैं। अभी तक 40% से ऊपर लोग वापस अपने गांव चले गए हैं। उसके लिए हमने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करी है, सीएम को भी लेटर लिखा है। उन्होंने यहाँ पर हेल्प करने के लिए जो लोग राजस्थानी काफ़ी दूर गए हुए दूसरे ट्रेड में हैं, हम लोगों ने ये बोला कि हम ट्रेनिंग देंगे उनको एटलीस्ट हमारे पास 3-4 महीने बाद एक अच्छी स्किल लेबर तैयार हो जाए। क्योंकि अगर हमको चाइना से काम आएगा तो हमको वी नीड अ लेबर फोर्स, उसके बगैर हम लोग काम नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी बड़ा क्लाइंट है दे ऑलवेज हैव अ टाइम डिलीवरीज इश्यूज, और इंडियंस का उन लोगों के दिमाग में सेट है कि ये लोग नहीं दे सकते माल टाइम पे। तो हमको एक उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। आई होप कि नेक्स्ट ईयर हम लोगों को काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलेगा। फिर करेल जी और क्लोजिंग रिमार्क्स। सर अभी क्लोजिंग रिमार्क्स से पहले हम लोग अभी जो ये डिस्कशन और बात कर रहे थे इसी टाइम एक बड़ी खराब न्यूज आई है। दिल्ली में एक रिटेलर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी फैमिली अभी 2-3 दिन पहले पॉजिटिव टेस्ट हुई है। उनके यहाँ फैक्ट्री में मैनेजर पॉजिटिव आया था। वो लोग काम कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, और उनके यहाँ फैक्ट्री में भी लोग इधर उधर अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, बाहर आना जाना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अभी जस्ट द न्यूज इज इन दैट देयर मैनेजर हैज जस्ट डाइड। तो मेरे को अभी हम लोग इस पे पैनिक भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने को ऑल द टाइम माय ओनली एडवाइस टू एवरीवन, ऑल द फ्रेंड्स इज रिमेन अलर्ट, एक्सरसाइज प्रिकॉशन, इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट की और मैन्युफैक्चरिंग की ही बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं, अब हमारे यहाँ हेल्थ का भी ध्यान रखने में बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी। एज रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोगों को ये गलती नहीं करनी चाहिए, और अगर हमें जरा सा भी कहीं सिम्टम नजर आते हैं तो हमें रिपोर्ट करना चाहिए तुरंत। रिपोर्ट नहीं करने का नतीजा अभी हम देख रहे हैं, मेरे को बड़ा खराब लग रहा है। मैंने कुछ लोगों से मैसेज शेयर भी किया है। इट इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट एंड प्रोबेबली द फर्स्ट एक्सीडेंट इन द इंडस्ट्री इन कंट्री जहाँ डेथ हुई है। तो हम लोगों को सभी को ये ध्यान रखना चाहिए। और मैं अभी जैसे हमारे फ्रेंड गौरव जी बोल रहे थे, मैं इनसे एग्री भी करूंगा। और एक दूसरा चैलेंज और ह्यूमन ग्राउंड्स पर या ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज हमारे सामने है। ह्यूमैनिटी ने हमारी लाइफ टाइम में ऐसी कोई पैंडेमिक या पैनिक फेस नहीं किया है, हम लोग फेस कर रहे हैं, और अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं है। कब आएगी हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन इससे पहले हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, प्रिकॉशन लेना, बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना। मैं बार बार यही कहूँगा। तो मैं यही मेरा क्लोजिंग नोट है। मैं सभी को कहूंगा कि सेफ रहें, लोगों को सेफ रखने की कोशिश करें, अलर्ट रहें। अगर आपको कुछ समझ में आता है, दिखाई देता है, जरा सा भी डाउट होता है, रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, वी कुड बी इन ट्रबल। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आई थिंक बाकी आज के लिए बहुत मैं बकबक कर चुका हूँ। नहीं आप बकबक बिल्कुल नहीं कर चुके सर। बहुत ही आपने एक्सट्रीमली प्रेशियस इंफॉर्मेशन दिए हैं। रमेश जी, व्हाट आर योर क्लोजिंग रिमार्क्स? Yeah, I think what Karel ji has said, I think as a responsible businessman, responsible family head, not only we have to maintain him, and also I think we should maintain the health of the business, because you know that COVID situation has been disturbed all the human beings. But I think we should take this as an opportunity. Now, if you see the before the lockdown and after the lockdown, the gold price has gone up by almost 20%. I think we are trying to tell the customers, we are sending messages. Now, this period is uncertainty in the future. Please invest in gold, because there is high liquid and appreciation wherever it is. So we are trying to take the opportunity also, because this is a period of uncertainty. So it is always called as a safe haven. The gold is called as also safe haven, hedge against inflation, whatever it is. So even we are trying to market like this. We are telling a lot of people who have invested in our monthly schemes, they have seen their profit gone up by 20%. So we are trying to tell the customer, even though it's not too late, please invest in gold. I think that is the way. I think collectively we should promote the industry. Thank you. Thank you. Nitin ji, your last closing remarks.
यस सर, मैं ये बताऊंगा कि हमको सबसे पहले तो हमारे जितने हॉलीडेज है, चाहे वीकली हो कोई भी, वो सब कैंसिल करने पड़ेंगे। जितनी हमको 60 दिन का डिफिसिट है वो हमको यूज लेके ऑल डे ओपन करके स्टाफ को बराबर करना पड़ेगा। दूसरा, हम लोगों को स्टडी ये करना पड़ेगा कि इस कोविड के अंदर कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिनको नुकसान नहीं हुआ है और जिनको नुकसान हुआ है। हमको हमारे कस्टमर 1.5 लाख 2 लाख कस्टमर को पूरा टैप करने की बजाय बहुत तो चिढ़ जाते हैं कि आप खाने पीने की जगह नहीं, आप ज्वेलरी की बात कर रहे हैं। हमको स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन सा कस्टमर हमारे पास पोटेंशियल है जिसको इससे इफेक्ट नहीं हुआ है, कौन कौन से ऑपरेशन थे, वो हमको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के जो 2.5 महीने में जो है इसको बहुत डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। मैं माइंड स्पीक से भी एक्सपेक्ट करूंगा कि गवर्नमेंट ने अभी तक के जो जो रियायत दी है, जो जो एक्सपेक्ट किए, उसके लिए भी हमें स्टडी करके लोगों को वो बताए, उसको करना पड़ेगा। और बैंकिंग वालों के साथ मीटिंग करके पूरा रिस्ट्रक्चर और रीशेड्यूलिंग करने के लिए अच्छा गाइडेंस लेना पड़ेगा। Fantastic. I think overall like very informative webinar. I think ये हमने बहुत इजी ले लिया था कि दुकानें या फैक्ट्रियां बहुत आराम से शुरू हो जाएगी और हम तो दूसरे दिन से काम करने लग जाएंगे। लेकिन अब जब बात डीप जाते हैं एक एक डिस्कशन के अंदर, तो आई थिंक द challenges are very big. The trouble that we have to go through is also going to be tough. Now, while the going gets tough, I think there is a great opportunity that you can save yourselves, you can save your businesses, and you can drive them on the right path. समय शायद है डिफिकल्ट अपना, लेकिन ये कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। समय बदलते रहेगा और अपने को बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं निकालना पड़े, यही हमारी कोशिश रहेगी। इसके साथ मैं अविनाश जी को विनती करूंगा, अगर कोई क्वेश्चंस किसी के आए हैं तो पूछ ले। अशोक भाई, आपने समय बोला तो उसके ऊपर एक फेमस मेरी 2 लाइन कोट कर देता हूँ। और बोल दीजिए, बोल सर, आप वही तो चैंपियन है इसके। ए बुरे वक्त अदब से पेशा, वक्त ही कितना लगता है वक्त को बदलने को, वक्त ही कितना लगता है वक्त को बदलने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कड़ेल जी विल बी हैप्पी इफ यू कैन आंसर। जैसे यूवी बॉक्स अपन लोग बात कर रहे हैं, so people will be having doubt and people will need the clarification also. How much time a piece of jewelry should be kept in the UV box? 10 मिनट का मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट टाइम बहुत होगा मेटेलिक सरफेसेस के लिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप 10 मिनट से ज्यादा भी उसको रख सकते हैं। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आप लोगों ने किसी ने ओजोन जेनरेटर्स का नाम सुना होगा, ओजोन जेनरेटर्स का। अगर आपको डाउट है तो ओजोन जनरेटर्स मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है। केंट आरओवी बेचता है सब्जियां वगैरह या फ्रूट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए। आप इन एडिशन टू यूवी लाइट आप ओजोन जनरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। उनमें उसका ओजोन का गैस का आउटलेट होता है। आप अपने किसी भी एनक्लोजर में या बॉक्स में उसको कनेक्ट करके आप चाहें तो उससे भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने यूवी बॉक्स जो आप बना रहे हैं, अगर अपने यहाँ भी फैब्रिकेट करके भी बनवाते हैं आप एक कारपेंटर से लकड़ी का भी बनवा सकते हैं, तो आप उसमें ओजोन गैस भी पास कर सकते हैं। तो डबल ट्रीटमेंट हो गया, यूवी लैंप का भी हो गया, ओजोन का भी हो गया। आपको थोड़ा सा सेफ्टी या कॉन्फिडेंस आ जाएगा। Great. So 1 minute, sir. I think they tell it is 1 minute. Is it now enough? Enough, sir? Karel ji, they tell it's 1 minute is enough? No. I think 1 minute should not be sufficient. Minimum for metallic objects, you should have 10 minutes. For paper, currency, you can have something like 5 or 10 minutes. For pieces of jewelry, the best practice should be 10 to 15 minutes. So, Kadel ji, one more question which is there in lot of minds, because हमारे पास में जड़ाऊ ज्वेलरी का बहुत चलन है। तो एक दिमाग में सबके ये डर बैठा हुआ है कि अगर हम डिसइंफेक्टेंट मतलब जैसे यूवी लाइट में रखते हैं तो पोल्की का क्या होगा, उसको कहीं टार्निश तो नहीं होगी? तो जस्ट नहीं, पोल्की या जो उनका जो डांक बंधी हुई होती है, सभी कुंदन वाले समझ जाएंगे। प्रैक्टिस में इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो डांक बांधना समझते हैं। जो सिल्वर फॉयल की बैकिंग होती है उसमें से लाइट पास करेंगे स्टोन में से या हीरे में से, पोल्की में से, और वो अगर सिल्वर फॉयल तक पहुंचती है तो यूवी लाइट डजंट रिएक्ट विद सिल्वर। ये ध्यान रखिएगा, यूवी लाइट बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। अगर आपकी पीस ऑफ ज्वेलरी, आपका प्रोडक्ट टार्निश हो रहा है तो उसके कोई और रीजंस हो सकते हैं, यूवी लाइट एटलीस्ट नहीं होगा। अगर आप चाहें तो ओजोन गैस जनरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी ने भी ग्रुप पे लिखा भी केंट आरओ बेचता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। आप उससे भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन मेरे ख्याल से कस्टमर के लिए स्टोर में जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन मुझे लगता है वो यूवी लाइट ही लगता है। वो हैजल फ्री है, आपने रख दिया, टाइमर लगा दिया एंड यू टेक इट आउट आफ्टर सम टाइम। ये आइडियल रहेगा। ग्रेट, अविनाश जी कोई और प्रश्न है? या एक मोहनलाल जी वांट्स टू स्पीक एंड आस्क अ क्वेश्चन। मोहनलाल जी, ओवर टू यू। कड़ेल साहब, हेलो, मेरा सवाल कड़ेल साहब से है। साहब, ये तो पूरा वही फॉलो कर रहे हैं मार्केट में, हमारे इधर 300 दुकानें हैं। आपने जो इतनी आई ओपनर बोला है, इसका एक डू डोंट एसओपी बनाई है साहब, और लिंक आप भेजाइए। और एक चीज साहब, आगे के चलते चलते धीरे धीरे इंडियन मेंटालिटी जो कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, सुस्तपना, वो मेंटल टफनेस कैसे डेवलप करे फिजिक्स साइकोलॉजिकली? मैंने आज सर करेंगे, अभी 2 दिन में करेंगे। We join Art of Living classes. कॉम्प्लेसेंसी ब्रेन में आ जाती है, और अपने ज्वेलरी सेक्टर में जरा आलसपना और एजुकेशन की कमी नहीं कहूंगा मैं, कॉम्प्लेसेंसी को मेंटली कैसे कॉन्कर करें? सर कॉम्प्लेसेंसी ह्यूमंस के नेचर का पार्ट होती है, और मेरे ख्याल से बिजनेसेस वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो पीपल ड्रिवन नहीं हो, जो प्रोसेस ड्रिवन हो। तो मेरा ये मानना है कि ये जो भी आप प्लान कर रहे हैं, इनको प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट करिए और अपने लोगों को एक चेकलिस्ट दीजिए कि वो प्रैक्टिस करें। जो डिसइंफेक्शन का रूटीन बना रहे हैं, जो किसी चीज पे काम कर रहे हैं, उनको चेकलिस्ट दीजिए, उसको टिक करते रहें, उसमें एंट्री करते रहें, उसको जॉट डाउन करते रहें। आप एक जरा तो बहुत सारी लिंक दीजिए। सर मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी समराइज करके एक भेजिए। मोहनलाल जी, सर मैंने एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जीजेसी के साथ शेयर किया था, जो उन्होंने अपनी पीपीटी में इनकॉर्पोरेट उसके कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। लिंक हाँ, मैं शेयर करूंगा, मैं जरूर शेयर करूंगा। शेयर किया हुआ है, जीजेसी से भी शेयर कर दिया गया है विद सपोर्ट ऑफ कड़ेल साहब। मांग रहे हैं लिंक चैट पे। अच्छा, चैट पे लिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मेरी ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है। मैं जीजेसी ऑफिस से बोलूंगा, माइंड स्पीक के ग्रुप में डाल देंगे, सबको पहुंच जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ माइंड स्पीक के ग्रुप में, क्योंकि मैं हूँ नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप मेरे को भेज देना कड़ेल साहब, मैं भेज दूंगा। अविनाश जी, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अविनाश जी। हाँ सर। मोहनलाल जी के बात पे से एक बहुत अच्छा मेरे सामने एक आया है। We dream too early and act too late. We trust too early and forgive too late. We get angry too early and apologize too late. And we give up too early and restore too late. We cry too early and smile too late. And आखिरी में we try to change but we cannot change. We always get it late. Change early or it will be too late. Change early or it will be too late. टिपिकल नितिन जी, टिपिकल नितिन। अशोक भाई ने बोला था। Vinit bhai, over to you. I think I am very thankful to the panel, करेल जी, रमेश जी, गौरव जी, और ऑफिशियल हमारे आज के वोट ऑफ थैंक्स देंगे विनीत वसा जी। तो मैं उनसे निमंत्रित करूंगा कुछ, that he does the closing. आज माइंड स्पीक के जो दूसरे सेशन में सबसे पहला वेबिनार में आज काफी जो नया नॉर्मल है उसमें हम कैसे जिए, उसके काफी सारी अच्छी नॉलेज हमारे साथ आई है। और खास डीडी करेल जी, आपने जो हमें टेक्निकल नॉलेज बताया, काफी सारा टेक्निकल नॉलेज हमें मिला है और उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। गौरव जी, आपने जो हमें मानवता के एस्पेक्ट से जो भी चीजें सिखाई तो वो भी बहुत बढ़िया है और हम वो भी सब इम्प्लीमेंट करेंगे। नितिन जी, आपकी काफी वन लाइनर्स आई और उसमें सबसे बढ़िया जो है कि आज की तारीख में आदत बदलने की आदत हमें जो डालनी है तो वो हमें सबको भी दिल में रखना रहेगा। और रमेश जी, आपने भी काफी सारी चीजें हमें बताई और स्पेशली जो आपका जो एसओपी और उसका जो मॉक ड्रिल है वो पॉइंट सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि सब लोग करेंगे भी। और आखिर में जो अशोक जी ने इतना जबरदस्त बढ़िया मॉडरेशन किया है, सब पॉइंट्स हमारे जो थे क्वेश्चन सब कवर किए हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है और उसको अच्छी तरीके से कंक्लूड भी किया है। और एक जो है अभी हम अल्टरनेट डे पे माइंड स्पीक के वेबिनार्स करेंगे, तो संडे को द डिजिटल वर्ल्ड, जो हमने ये 45 दिनों में जो डिजिटल का नॉलेज लिया है उसको हम प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो उसके ऊपर वेबिनार है। तो मैं आप सबको बोलता हूँ कि संडे 2 बजे वापस हम मिलेंगे और टिल दैट टेक एक्स्ट्रा केयर एंड
Be safe. Thank you, everyone. Thank you, Vinit ji. Thank Thanks you, a lot. the entire panel once again. I think And, one advice to all the jewelers. Yeah, Please please do give. meditation. Please do meditation. I think you can see the For change. peace of mind. Because now we are in a lot of confusion with gold price, diamond price, Lot of stress. sanitization. No, at least it will be sequence. Once you do meditation, it will come in sequence. At least it will come very abruptly. So that I have experienced. So you have started, Ramesh ji. Thank you. Chaliye, sir. Thank you very much. All the very Thank best. you, everybody. Thank you very much for a nice session. Thank you, everyone. Thank you very much.